مس پلیز بات سنیں مس۔ شامیر اس کے پیچھے چل رہا تھا مگر وہ نہ رکی۔ وہ چلتی رہی مس۔ وہ اچانک اس کے سامنے آ گیا۔ زرمش نے رک کے اسے ایک نظر دیکھا۔ اس کی زخمی نظریں شامیر کا دل چیر گئی مگر اگلے ہی لمحے وہ سر جھٹک کے آگے بڑھ گئی۔ شامیر نے بے ساختہ اس کی کلائی پکڑ لی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھا، پھر ہاتھ کھینچ کے وہ غصے سے دیکھ کے چلائی، ہمت کیسی ہوئی تمہاری میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ شامیر سر جھکا گیا۔ مس آپ میری بات تو سنیں۔ اسے زاور شاہ کا بھاری تھپڑ یاد آیا جو ابھی کچھ دیر پہلے اس کے گال پہ پڑے تھے۔ ایک بار پھر سے درد نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ پنکاری، تمہیں کیا شامیر، تمہیں کیا؟ کیوں جان نہیں چھوڑتے میرے؟ کیوں پیچھے پڑ گئے ہو میرے؟ بخش دو میری جان۔ وہ جانے کے لیے مڑی۔ مس محبت کرتا ہوں میں آپ سے، شامیر جلدی سے بولا تھا۔ زرلش اچانک سے مڑی تھی، اسے اپنی خونخوار آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ شامیر نے اس بار نظریں نہیں جھکا، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ کیسے مار سکتا ہے آپ کو مس؟ آپ نے اسے کچھ نہیں کہا، وہ کیسے آپ کو اتنی اذیت دے سکتا ہے؟ آپ کا خیال نہ ہوتا مجھے میں اس کی؟ زرلش چلائی۔ بس کر دو شامیر، میرے پیچھے مت آنا اب۔ وہ اسے تنبیہ کرتے جانے کے لیے مڑی اور چلنے لگے۔ عائشہ سے اپنے لب چوئے تو خون بہہ رہا تھا، آنسو اس کی آنکھوں میں دوبارہ سے تیرنے لگے مگر وہ چلتی رہی۔ اسے موت بھی تو نہیں آتی تھی، مرنے کی ایک بار کوشش کی تو اسے زاور شاہ سے مار پڑی تھی۔ وہ جلد سے جلد اپنی روم میں پہنچنا چاہتی تھی۔ ہاسٹل پہنچ کے وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے تک پہنچ گئی۔ اندر آ کے پیچھے سے دروازہ بند کر کے وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ رونے کی وجہ سے اس کا کاجل بہہ چکا تھا، اس کے نازک سے گالوں کے ابھی تک انگلیوں کے نشان تھے، اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ گردن سے تھوڑی نیچے نظر پڑی تو وہاں لگے زخم کو دیکھتی رہی جو کل رات اسے لگی تھی جب زاور شاہ کو خود سے دور کرنے کی کوشش میں لگی تھی۔ زاور شاہ نے نشے میں اس کی گردن دبوچ لی تھی۔ وہ بہت مشکل سے خود کی عزت بچا کے بھاگی تھی اور آج اس نے اس کا بدلہ ایسے لیا کہ اسے اپنے اسٹوڈنٹ شامیر کے ساتھ تھپڑ مار دیا۔ شامیر اسے مارنے کے ارادے سے آگے بڑھا تو زرلش نے اسے روک دیا۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں مس۔ شامیر کی آواز اس کے گانجوں میں گونجی۔ اس نے سسکی لی تھی۔ تمہاری یہ جو سانسیں چل رہی نا، جب یہ رکے گی تب تمہیں مجھ سے نجات ملے گی۔ اس کے کانوں میں زاور شاہ کی آواز گونجی۔ تم کیا چاہتی ہو، موت کو یا زاور شاہ کو؟ وہ جلدی سگریٹ اس کے ہتھیلے پہ رکھتے بولا۔ وہ سسکی تھی۔ زاور شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، ان آنکھوں میں خوف دیکھ کے اسے سکون مل رہا تھا۔ بولو زرلش، مجھے درد ہو رہا ہے۔ بولو زرلش، موت یا میں؟ وہ مطمئن انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہا تھا۔ آپ؟ وہ سسکی تھی۔ تب زاور شاہ سگریٹ ہٹا کے اسے دیکھنے لگا۔ وہ ہاتھ پکڑ کے رو بھی نہیں پا رہی تھی۔ رونے سے مجھے نفرت ہے، رونا نہیں، بس میں تمہاری ان آنکھوں میں خوف دیکھنا چاہتا ہوں ہمیشہ۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھتی وہ ایک دم سے چیخی۔ خود کو آئینے میں دیکھ دیکھ کے وہ چیخ رہی تھی، ماں کیوں مجھے اپنے ساتھ لے کے نہیں گئی؟ کیوں اس ظالم دنیا میں مجھے چھوڑ دیا؟ کیوں؟ وہ رونے لگی۔ کالج پہنچتی وہ جلدی سے کلاس میں گیا لیکن ابھی تک زرلش نہیں آئی تھی۔ وہ سر جھکا کے اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ کل اس نے پہلی دفعہ اپنے احساسات کو زبان دی تھی۔ مارننگ میم، سب نے ایک ساتھ کہا۔ مارننگ، سٹ ڈاؤن آل آف یو۔ سب بیٹھ گئے تو اس کی نظر شامیر پر پڑی جو کہنی ٹیبل پر ٹکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ نظر انداز کر کے سب سے مل کے لیکچر کے متعلق سوال کرنے لگی۔ شامیر اس کے چہرے کو نظروں کے اظہار میں لیے مسکرا رہا تھا۔ زرلش کی نظر اس پہ پڑی لیکن اسے اپنی طرف تکتا پا کر اس نے نظریں پھیر لی۔ وہ جتنا کوشش کر رہی تھی کہ شامیر کے ساتھ نارمل رہے مگر کل کے بعد وہ نارمل نہیں ہو پا رہی تھی اور شامیر اس کے فیض سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ زرلش اس سے 5 سال بڑی تھی۔ پہلی بار اسے وہ عام سی لگی تھی لیکن ایک دن اچانک اسے احساس ہوا کہ بس یہ اٹریکشن ہے، کچھ دن بعد اتر جائے گی لیکن وہ ہر روز نئے سر سے اس کو اپنے دل میں طرب محسوس کرتا اور اسے محبت ہو گئی زرلش سے۔ وہ خیالوں سے نکل کے سامنے دیکھ رہا تھا جہاں زرلش اس کے بالکل سامنے کھڑی اس سے نوٹس مانگ رہی تھی۔ وہ بکلا کے دیکھنے لگا۔ زرلش کے لبوں پہ مسکراہٹ ٹھہر گئی اس کی پگلاہٹ پر۔ وہ شرمندہ سا اب زرلش کو دیکھ رہا تھا۔ کلاس آف ہونے پر سب اسٹوڈنٹ جانے لگے تو مگر شامیر وہی بیٹھا رہا۔ اس کی نظر زرلش پر تھی جو کچھ پیپرز دیکھ رہی تھی۔ وہی بیٹھ کے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا شامیر اٹھ کے اس کے پاس آئے۔ مس، زرلش نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ کیسی ہے اب آپ؟ ٹھیک ہوں شامیر، تم کیسے ہو؟ وہ مسکرا رہی تھی۔ کل کے واقعے کا کچھ بھی نہیں تھا اب اس کی آنکھوں میں۔
اس کے چہرے پہ وہ مسکرا دیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں مس۔ وہ پھر سے پیپرز میں بزی ہو گئی۔ شمیر دیر تک اس کے ایجوکیسر کو دیکھتا رہا، پھر اپنی سیٹ پہ آگے اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور زرلش کے ایجوکیسر کو دیکھتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ زرلش نے سر اٹھا کے دیکھا، وہ جا چکا ہے۔ وہ دیر تک دروازے کو دیکھتی رہی۔ وہ اپنی دھن میں گیٹ سے نکل ہی تھی کہ جب زوار شاہ اس کے سامنے گیا اور رک کے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کے اسے سکون مل رہا تھا۔ وہ کے لیے اس کے سامنے تھا۔ سرپرائز! زرلش منہ موڑ گئی۔ وہ ناراضگی کیسے ختم ہو گئی ابھی؟ وہ سر جھکا کے اس کا چہرہ دیکھتے بولا تھا۔ اپنی انگلی کی پور سے اس کی گردن چھونے لگا۔ وہ بدک کے پیچھے ہٹی اور اسے دیکھنے لگی۔ زوار شاہ کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ زرلش ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ کہنے لگا، چلیں؟ کہا۔ سوالیہ نظریں اس پر تھی تو زوار شاہ کی گرفت اس کے ہاتھ پہ سخت ہوئی۔ اس کی سسکی سی نکلی۔ زوار شاہ مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ چل دیا کرو میرے ساتھ، مجھ سے مت پوچھا کرو، کہا۔ وہ خوفزدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ زوار شاہ اسے لے کار میں بیٹھ گئے۔ شمیر دور کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ ایک سایہ سا اس کے چہرے پر گزرا تھا۔ ایگزامز کی وجہ سے اس کے کافی دن بزی گزر رہے تھے۔ شمیر کا لاسٹ ایئر چل رہا تھا۔ اس کے بعد اسے یونیورسٹی جوائن کرنی تھی اور وہ زرلش سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا۔ پھر وہ کبھی روز زرلش کو دیکھ نہ پاتا، اس سے بات نہ کرتا۔ اداسی اس کے چہرے سے آئی تھی جسے زرلش بھی محسوس کر چکی تھی، مگر وہ خاموش تھی اور یوں خاموش رہنا ہی ٹھیک تھا دونوں کے لیے، ورنہ طوفان آنے میں کون سا دیر لگتی ہے۔ مس، آج وہ ہمت کر کے آ ہی گیا تھا۔ جی۔ زرلش اسے دیکھنے لگی۔ شمیر نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر بند کر دیا۔ وہ اپنا سر جانے لگا۔ زرلش اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ آئی ول مس یو مس، وہ اچانک سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ زرلش عام سے انداز میں مسکرائی۔ آئی ول آلسو مس یو۔ شمیر بے چارگی سے اسے دیکھنے لگا۔ مس، جی نہیں سکوں گا آپ کے بنا۔ زرلش دھیرے سے مسکرائی۔ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا شمیر، یہ سب باتیں ہیں مس، میرے الفاظ، میرے فیلنگز ہیں، آپ اسے محض باتیں بول رہی ہیں۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ وہ سر جھکا گئے۔ جب اسے دیکھا تو آنکھوں میں بے بسی تھی۔ بہت بے بس ہوں مس۔ کیا میں آپ کو کھو چکا ہوں یا کوئی امید کہیں باقی ہے؟ میں تمہاری تھی ہی کب شمیر، وہ دھیرے سے بولی۔ شمیر دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر وہ کچھ نہیں بولا۔ چلتا ہوں مس، وہ جانے کے لیے اٹھا۔ اللہ حافظ، وہ کہہ کے یہاں سے جا چکا تھا۔ زرلش کی آنکھوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ زوار شاہ نے اسے ڈنر پہ انوائٹ کیا۔ وہ بلیک ڈریس میں تیار کری تھی، خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اس کا گورا رنگ نکھر گیا تھا اس بلیک ڈریس میں۔ اسموکی میک اپ کے ساتھ اس نے لائٹ پنک لپ گلوس لگائے۔ بوجھل دل کے ساتھ وہ کمرے سے باہر نکلی۔ زوار شاہ نیچے اس کا منتظر تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے وہ نیچے اتر کے اس کے پاس آئی۔ زوار شاہ اس کو بہکی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ یو آر لکنگ گارجیس۔ زرلش نے اسے خاموشی سے دیکھا۔ وہ دونوں ایک آفیشل پارٹی میں جا رہے تھے۔ زوار شاہ اسے لیے باہر نکلا۔ کچھ لڑکیاں تو حسد سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، رشک کر رہی تھی، لیکن کوئی زرلش سے بھی پوچھتا کہ وہ کس حال میں ہے۔ پارٹی میں سب کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی، خاموش کری سب کو دیکھ رہی تھی۔ جب پیچھے سے کسی نے اس کے سلیو لیس بازو کو بہکے انداز میں اپنی انگلیوں سے چھوا تو وہ گھبرا کے مڑی تو زوار شاہ تھا۔ اس کی بہکی نگاہیں زرلش کے چہرے پہ ٹکی تھی۔ آپ؟ زوار شاہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے دوسری سائڈ لے گئے جہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے دیوار سے لگا کے اس کی گردن کو اپنی انگلیوں سے چھونے لگا۔ زرلش اسے خوفزدہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں خوف دیکھ کر سکون ملتا ہے، زوار شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ وہ گھبرا گئی۔ کیا کر رہے آپ؟ کچھ نہیں، تمہاری خوبصورتی کو سراہ رہا ہوں۔ وہ اس کی دونوں ہاتھوں کو دیوار سے لگا کے اس پہ جھکا۔ اس کے منہ سے بہت گندی بو آ رہی تھی۔ زرلش کو سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ اسی وقت کچھ شور سا ہوا۔ وہ جلدی سے زرلش کو چھوڑ کے اسی طرف چلا گیا۔ زرلش کا وجود لرز رہا تھا۔ زرلش کالج میں تھی جب اس کے والدین انتقال کر چکے۔ زرلش کو اذلان شاہ نے اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس کی سرپرستی کی اور اسے پڑھائی لکھائی انہیں اپنے بیٹے کی وجہ سے زرلش کو ہاسٹل میں رہنا بہتر لگا، لیکن زوار شاہ نے وہاں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا اور وہاں بھی آ جاتا تھا اسے تنگ کرنے، اور زرلش کو اس نے سختی سے منع کیا تھا اس بات سے کہ اس بات کا اذلان شاہ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے ورنہ وہ اس کا حلیہ بگاڑ دے گا۔ وہ چپ سادھی سے اس کا ہر ظلم برداشت کر رہی تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، وہ خوفزدہ آواز میں کہہ رہی تھی، مگر وہ کہاں سن رہا تھا۔ وہ اس پہ تپروں کی بارش کر کے اب اس کے بال کھینچ رہا تھا۔ وہ درد سے چیخی تھی، چیخو اور زور سے چیخو۔ تم پارٹی سے کیوں گئی؟ ہاں؟ کیوں؟ مجھ سے پوچھے بنا آواز سے نکلی۔ کیوں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ رونا نہیں، آنکھیں نوچ لوں گا۔
ڈر کے اس نے اپنی آنکھیں بند کر دی۔ اس نے سسکی لی تھی۔ زوار شاہ نے اسے بالوں سے کھینچ کے دھکا دے کے دور گرایا تھا۔ زور سے اس کا سر دیوار سے جا لگا۔ وہ کراہ کے رہ گئی۔ اس کی پیشانی سے خون بہنے لگا۔ زوار شاہ کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے زرلش کے بے جان وجود کو چھوا۔ زرلش ڈر کے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی پیشانی اور چہرے پہ خون تھا۔ زوار شاہ گھبرا کے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ زرلش کے رکے آنسو بہنے لگے۔ وہ اسی لیے بیڈ پہ آ گئے، اس کے بال ہٹانے لگا اور زخم کا معائنہ کرنے لگا۔ وہ جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لے آیا اور اس کا زخم صاف کرنے لگا۔ زرلش کے منہ سے سی نکلی۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ زرلش کچھ نہ بولی، بس خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کا کچھ پتہ نہیں تھا کب کیا کر دے۔ گھر میں زرلش کو دیکھ کر اذلان شاہ کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ ارے میری بیٹی آئی ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ مسکرائی۔ کیسے ہیں آپ انکل؟ اپنی بیٹی کو دیکھ کے میں ٹھیک ہو گئی۔ یہ کیا حالت بنائی تم نے؟ پیشانی پہ کیا ہوا ہے؟ ہاسٹل میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ زرلش نے نظریں جھکا کے کہا۔ وہ پریشان ہو گئے، ڈاکٹر کے پاس گئی تھی؟ جی انکل، وہ اپنے بال سامنے لاتے ہوئے بولی۔ آپ بیٹھے نا، میرا کہاں دل کرتا ہے کہ میری بیٹی ہاسٹل میں رہے، لیکن میں مجبور ہوں زوار شاہ کی وجہ سے۔ اس کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، میں کب یہ برداشت کر سکتا ہوں؟ ایک پل کو اس کا دل چاہا کہ سب بتا دے، لیکن چپ رہی۔ تم ٹھیک تو ہو نا بیٹا؟ ادھر کوئی پریشان تو نہیں؟ زرلش انہیں دیکھ کر تھوڑا مسکرائی۔ نہیں انکل، میں خوش ہوں ادھر۔ وہ سر جھکا کر مسکرا گئی تھی۔ یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک سال اور گزر گئے۔ یوں ہی زوار شاہ کے ظلم سہتے ہوئے جائے نماز بچھائے وہ آدھی رات کو اپنے اللہ کے سامنے جھکی دعا مانگ رہی تھی، رو رہی تھی، اپنے لیے سکون مانگ رہی تھی، اچھی زندگی کی دعا مانگ رہی تھی۔ مجھے نجات دلا دے اے اللہ، اس ظالم انسان سے مجھے نجات دلا دے۔ آپ کی یہ بندی ایسا کون سا گناہ کر چکی ہے کہ یہ سزا مل رہی ہے؟ یا پھر یہ آزمائشیں کیا ہے؟ میری مدد فرما میرے مالک، میری مدد فرما، مجھے بخش دے میرے مولا، میری مدد فرما۔ وہ جائے نماز سے اٹھی۔ جائے نماز طے کر کے اس نے اپنی جگہ پہ رکھا اور خود کو آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے دیکھنے لگی۔ اس نے اپنی چادر ہٹائی۔ اس کی مردہ آنکھیں، اس کے گردن پہ رسی کے نشان تھے۔ اس نے اپنی گردن کو چھوا۔ وہ اسی لمحہ یاد آئی جب زوار شاہ اس کی گردن میں رسی ڈالے کھینچ رہا تھا۔ اسے اپنی سانسیں نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی۔ زوار شاہ نے شاید رحم کر کے اسے چھوڑ دیا تھا، اسے زور سے دھکا دے کے نیچے گرا دیا تھا اور رک رک کے سانس لینے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کی آنکھ سے آنسو پھسلا تھا۔ اس کی نظر اپنے بازو پہ پڑی جہاں زوار شاہ نے اپنی بیلٹ سے مار مار کے اس کی کمر اور بازو پہ بیلٹ کے نشان چھوڑ دیے تھے۔ اسے گھٹن ہوئی۔ وہ کھڑکی کے پاس آئی، لیکن ہاسٹل کے نیچے زوار شاہ کے آدمیوں کو دیکھا تو واپس اپنی جگہ آ کے بیٹھ گئی تھی۔ اسے اور تو کچھ کرنا نہیں تھا سوائے رونے کے۔ رونے لگی، لیکن اسے چپ کرانے والا کوئی نہیں تھا۔ تمہارے یہاں کی بنی ہی اس لیے ہے کہ میں اسے ہر لمحہ خوف دیکھوں۔ کیوں کرتے ہیں آپ ایسا میرے ساتھ؟ زوار نے اس کے ہونٹ دبوچے۔ میرے سامنے زبان چلاؤ گے؟ اب وہ تو ڈر سے چیخ بھی نہیں سکتی۔ اس کے منہ پہ زوار شاہ کا ہاتھ تھا۔ وہ لمحہ یاد کر کے سسک پڑی۔ کیوں میرے ساتھ ہی کیوں؟ اے اللہ، اور کتنا امتحان باقی ہے؟ موت بھی تو نہیں آتی مجھے؟ میرے اللہ، موت ہی دے دے۔ وہ روئی رہی تھی۔ زوار کا بہکاوا وجود اس کے اوپر تھا۔ وہ چلا رہی تھی۔ اس کے منہ سے آتی بدبو کی وجہ سے وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ پوری قوت جمع کر کے اس نے زوار شاہ کو دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ وہ نشے میں تھا، لڑکھڑا کے گر گئے۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر جانے کے لیے لپکی ہی تھی جب زوار شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی طرف کر کے اسے زور سے تھپڑ مارا۔ بدذات، مجھے دگا دو گی؟ میں تمہارا حشر کر دوں گا۔ وہ ہوش بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ زرلش کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ وہ کیسے اپنی عزت بچاتی اس سے؟ دیکھو، ہاتھ نہیں لگانا مجھے۔ وہ زور سے قہقہا لگا کے ہنسا تھا، پھر اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا، اسے اپنے قریب کھینچ کے کہنے لگا، یہ لو، لگا لیا ہاتھ، کیا کر لو گی جان من؟ وہ بہک رہا تھا۔ زرلش خود کو اس سے دور کرنے لگی۔ زرلش نے ایک بار پھر سے پوری قوت سے اسے دھکا دینا چاہا، مگر وہ ناکام رہی۔ یا اللہ، میری مدد فرما، میرے مالک، میری عزت کی حفاظت فرما۔ آنکھیں بند کر کے وہ دعا کرنے لگی اور پوری قوت سے زوار شاہ کو دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا نیچے گرا تو اس کا سر ٹیبل سے ٹکرایا۔ وہ کچھ بھی دیکھے بنا کمرے سے نکلی اور پیچھے سے دروازہ بند کر کے بھاگتی ہوئی باہر کی طرف دوڑ لگا دی، لیکن سامنے سے زوار شاہ کے آدمی کو دیکھ کے وہ رک گئی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے، اس کے پھٹے کپڑوں کو دیکھنے لگے۔ زرلش خود میں سمٹ سی گئی۔ اگلے لمحے ہی اس نے اپنی نظریں جھکا دی۔ وہ احترام سے سائڈ پہ کھڑا ہو گیا۔ زرلش اسے حیرت اور خوف سے دیکھنے لگی۔ زرلش بی بی، جائے آپ، اللہ آپ کی عزت محفوظ رکھے۔ وہ ممنون نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، پھر پیچھے اس
کمرے کی طرف دیکھا جہاں زوار شاہ باہر نہیں نکلا تھا، شاید بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس نے زرلش کو یہاں سے نکلنے میں مدد کی اور اسے بنگلے سے باہر لے جا کے اپنی چادر اڑا دی اور سر جھکائے احترام سے بولا، میں بھی ماں بہن والا ہوں۔ زرلش بیبی، آپ یہاں سے جتنا دور جا سکتے چلی جائے، اللہ آپ کی عزت کی حفاظت فرمائے، جلدی جائے۔ شکریہ۔ وہ ممنون نظروں سے اسے دیکھنے لگی، پھر منہ موڑ کے وہ بھاگنے لگی۔ گھنے درختوں میں بیچ بھاگتے بھاگتے وہ تک گئی، لیکن اسے بھاگنا تھا، اسے بہت دور جانا تھا، اپنی عزت بچانی تھی۔ وہ بھاگتی رہی یہاں تک کہ اسے روڈ نظر آئے۔ وہ روڈ کی طرف آئی، کوئی گاڑی اسے آتی نظر آئی۔ اچانک سامنے آئی گاڑی کے وہ شخص بمشکل بریک لگائے اس افراد کو دیکھنے لگا۔ گاڑی کی تیز لائٹس کی روشنی میں اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ گاڑی جیسے ہی رکی، وہ جلدی سے پیچھے سائڈ کا دروازہ کھول کے اندر بیٹھ گئی۔ میری مدد کر دے پلیز، مجھے بچا لے، وہ مار دیں گے مجھے، گاڑی چلائے پلیز۔ جانی پہچانی آواز شامیر کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے غور سے پیچھے بیٹھے وجود کو دیکھا، بال بکھرے ہوئے، چہرے پہ جگہ جگہ نیل کے نشان۔ نیم جان سی وہ لڑکی، اس کا دل دھڑکا تھا۔ مس، وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا۔ زرلش نے چونک کے اسے دیکھا، اس کی خوفزدہ آنکھوں میں اب اطمینان تھا۔ شامیر، اس کے لب مسکرائے تھے۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی خاتون نے پہلے زرلش کی بے جان وجود کو، پھر شامیر کو دیکھا تھا۔ شامیر نے جلدی سے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ گھر کے آگے گاڑی روک کے اس نے پہلے شامین کو دیکھا جو اسے دیکھ رہی تھی، پھر زرلش کے بے جان وجود کو۔ مما، آپ دروازہ کھولیں گھر کا، میں مس کو لے کر آتا ہوں۔ شرمین سر ہلا کے باہر نکلی تو شامیر باہر نکل کے زرلش کے سائڈ آیا اور دروازہ کھول کے اسے اپنی مضبوط بازوں میں لے کر گھر کی طرف بڑھا۔ اسے کمرے میں لے جا کے بیڈ پہ لٹا کے سیدھا ہوا تو اس کی نظر چادر سے جھلکتی زرلش کے پھٹے کپڑوں پہ پڑی۔ اس کا جسم جگہ جگہ سے نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ چونک کے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ مما، اس کے لہجے میں دکھ صاف بول رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ کون ہو سکتا ہے۔ وہ اب کالج میں پڑھتا، کوئی اسٹوڈنٹ نہیں تھا، وہ اب وجیہ مرد بن چکا تھا۔ اس کی پرکشش آنکھوں میں درد دیکھ کے شرمین آگے بڑھی، زرلش پہ کمبل ڈال کے وہ سیدھی ہوئی۔ ڈاکٹر کو کال کرو؟ کر کے وہ نمبر ملانے لگا۔ ڈاکٹر اسے انجیکشن لگا کے کچھ دوائیں لکھ کے جا چکا۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ شامیر نے اس کے چہرے کو دیکھا، اس کے ہونٹ پھٹے ہوئے تھے جو اب زخم بن چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے پاس گہرے نیل کے نشان تھے، اس کے گالوں پہ انگلیوں کے نشان تھے، اس کی گردن پر بھی بہت سے نشان تھے۔ اس نے درد سے آنکھ مینچ لی۔ مس، کیسے برداشت کرتی رہے آپ یہ سب؟ کیسے ہوش میں آتی؟ وہ اپنے شیر کی طرح سب پہ برس رہا تھا۔ کیسے چلی گئی وہ یہاں سے؟ تم میں کسی نے بھی اسے نہیں دیکھا؟ ایک لڑکی تم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے گزر کے چلی گئی اور تم لوگ انگلی منہ میں دیے بیٹھے رہے۔ سب سر جھکائے کرتے اور زوار شاہ ان سب کو کہا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ دفعہ ہو جاؤ سب اور ڈھونڈ کے لاؤ اسے میرے پاس، اتنا دور نہیں گئی ہوگی وہ غصے سے دھاتا ہوا بولا۔ سب جلدی سے باہر نکل گئے۔ زوار شاہ لب بینچا کمرے کے چکر کاٹنے لگا۔ زرلش، کہاں تک بھاگو گی؟ آخر میرے پاس ہی آؤ گی نا؟ وہ زہر خندہ انداز میں مسکرایا۔ نیند سے وہ چیخ کے جاگی تھی اور اب خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھی جا رہی تھی۔ شامیر آگے بڑھا اسے سنبھال سکے، مگر وہ چیخی جا رہی تھی، نہیں نہیں، چھوڑ دو مجھے، مت مارو پلیز، نہیں، اب نہیں ہوگا ایسے۔ مس میں شامیر، مس پلیز ہوش کرے۔ زرلش پہلے اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی، پھر شناسائی کی رمق آئی ان آنکھوں میں۔ شامیر، جی مس، میں شامیر، آپ سیف ہے ادھر، جسٹ ریلیکس۔ وہ مار دے گا مجھے، بہت مارے گا مجھے، پلیز مجھے بچا لو، میرا کوئی نہیں ہے، پلیز شامیر مجھے بچا لو، بچاؤ گے نا مجھے؟ وہ خوفزدہ سی سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگی، مجھے اس کے حوالے تو نہیں کرو گے نا؟ شامیر کو بہت دکھ ہو رہا تھا زرلش کو اس حال میں دیکھ کے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی نظر زرلش کے بازو پہ پڑی جہاں گہرے نیل کے نشان تھے۔ وہ دکھ کی کیفیت میں آ گیا۔ مس یہ؟ زرلش نظریں چرانے لگی۔ کیا بتا دے؟ وہ آپ کو مارتا تھا؟ دکھ کی لہجے میں کہتا وہ اس پہ جھک کے سر کو دیکھنے لگا۔ وہ ایک دم سے سسک پڑی۔ بہت ظالم ہے، مجھے بہت درد ہوتا تھا، بہت درد۔ وہ رو رہی تھی۔ شامیر نے ساتھ کر شرمین کو دیکھا۔ شرمین نے پاس بیٹھے اس کے گلے لگایا۔ اب تمہیں کوئی نہیں مار سکتا۔ وہ بلک بلک کے رو رہی تھی۔ شامیر تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنے دکھ تھے زرلش کے، اور اسے علم ہی نہیں تھا۔ علم ہوتا بھی کیسی؟ کالج کے لاسٹ ڈے پہ وہ شامیر کو بول چکی تھی صاف لفظوں میں کہ کیا وہ اپنا خیال اس کے دل سے نکال دے، اور شامیر یہ سوچ کے زرلش خوش رہے وہ سائٹ ہو گیا تھا۔ کیسے نہیں ملی وہ لڑکی؟ کدھر گئی؟ جان سے مار دوں گا تم سب کو میں۔ وہ بپرے شیر کی طرح ادھر ادھر چل رہا تھا۔ اس کے غصے کا سب کو علم تھا۔ سب سر جھکائے کرے تھے۔
पुलिस में रिपोर्ट कर दे सरकार। किसने पूछा। नहीं, वो दारा था। इसे मैं खुद ढूंढ लूँगा और इसे वो सज़ा दूंगा कि जो याद रखेगी हमेशा के लिए। इसकी आंखों में खून उतर आया था। जलिश, भाग लो जितना भागना है। अब मैं ढूंढ के तुम्हें वो सज़ा दूंगा जो कभी नहीं दी मैंने तुम्हें। इसके अंदर एक तूफान बर्बाद था। जलिश इसके हाथ से कैसे निकल गई ये ख्याल इसे जहर की तरह चुभ रहा था। आखिर कैसे एक आम सी नाजुक सी लड़की यूं बंगले से भाग गई और किसी को खबर भी ना हुई। आसपास का पूरा इलाका जंगलों से भरा हुआ था। इसे लगातार मिल जाएगी कहीं कहीं, लेकिन लाख ढूंढने के बाद भी वो इसे कहीं नहीं मिली। इसलिए अब इसका गुस्से से बहुत बुरा हाल था। इसे पहुंचने के लिए आहना का सूट दिया गया। आहना शामिर की छोटी बहन थी जो मेडिकल स्टूडेंट थी। वो अभी जलिश के ज़ख्मों पर मरहम लगा रही थी। जलिश ने दर्द से आंखें बंद कर ली। आहना दुख से इसके ज़ख्मों को देख रही थी। इसके पीठ और कमर पर मरहम लगा दी। इसकी आंखों में आंसू आ गई, लेकिन कहा कुछ नहीं। इसका पूरा जिस्म ज़ख्मों से और नीलों से भरा हुआ था। इसे जलिश की हालत देख के अफसोस हो रहा था। जलिश के चेहरे पे पहली दुख, कर्ब और दर्द और खौफ इसके अंदर का हाल बता रही थी। इसे देखते हुए आहाला ना बोली। आप यहाँ सेफ हो जलिश, बेफिक्र रहे आप। वो आपको नहीं ढूंढ सकता। जलिश की आंखों में फिर भी खौफ का तासर था, ऐसा खौफ जिसे शायद मिटने में बरसों लग जाए। जवार शाह का खौफ, इसके अल्फाज और इसके अजियत भरे लम्स। आहना को कॉलेज जाना था। वो इसे लिटा के तैयार होने चली गई। बाहर निकल के वो शर्मीन और शामिर के पास आए। इसके जिस्म का एक हिस्सा भी ठीक नहीं है। ज़ख़म और नील के निशान से भरे हुए इसकी बॉडी। शामिर को अपना दिल डूबता महसूस हुआ। शर्मीन ने दहल के दिल पे हाथ रखा। कौन जालिम था ये? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो हमारी गाड़ी से टकरा गई। मुझे लगता है इसे अंदरूनी इंजरीज भी आई होगी। इसका मुकम्मल मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। आहना की बात पे शामिर ने इसे देखा मगर कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहता भी क्या? जलिश को इस हालत में देख के सबको यही लग रहा था। इसकी आंखों में हम वक्त खौफ नजर आता इसे। इसका चेहरा ज़्यादा मार खाने से बिगड़ गया था। इसका पूरा जिस्म जख्मी था। सबसे बड़ी बात, इसकी रूह जख्मी थी। आंसू इसकी आंखों से आ गए, जिसे छुपाने के लिए वो वहाँ से उठकर चला गया। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, वो आ जाएगा। आहना की बात पे वो डर खौफ की कैफियत में आ गई थी। इसने शामिर को खौफजदा नज़रों से देखा। शामिर लब काटता इसके पास बैठ गया। मिस, अब आपको कुछ होने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। प्लीज़, ये ज़रूरी है। आपका ट्रीटमेंट अच्छे से होना चाहिए। आहना मेडिकल स्टूडेंट है। हम आपको वहाँ थोड़ी रखेंगे। हम आपका चेकअप करवा के वापस घर आ जाएंगे। जलिश ने बारी बारी आहना और शर्मीन को देखा जो तशवीश से इसे देख रही थी। फिर शामिर को देख के बोली, अगर वो आ गया वहाँ तो इसके लहजे में डर था। वो नहीं आएगा। आपको किस्मत ने दोबारा मुझसे मिलाया। मैं अब आपको कुछ नहीं होने दूंगा मिस। शामिर मजबूत लहजे में बोलता इसे देख रहा था। जलिश ने इसकी आंखों का यकीन देखा तो दिल में थोड़ा सा तसल्ली हुई। जलिश को वो 2 साल पहले का शामिर नहीं लगा, बल्कि वो अब मैच्योर मर्द के रूप में इसके सामने था। ठीक है ना जलिश? आहना ने पूछा तो इससे इस बाप में सर हिला दिया और इसके साथ शामिर को देखा जो इसे ही देख रहा था। जलिश के देखने पे मुस्कुरा पड़ा। चेकअप के बाद आहना और शामिर जलिश को लेकर बाहर निकले। भाई, आप जलिश को लेकर घर जाए, मैं रिपोर्ट्स लेकर आऊँगी। आहना के कहने पे शामिर ने सर इस बाप में हिलाया और जलिश पे नज़र डाली। वो छोटे कदम उठाती इसके साथ चलने लगी। कॉरिडोर से गुजरते जलिश के सामने रश नज़र आया तो इसने बेसाख्ता शामिर का बाजू पकड़ लिया और इसके पीछे होने लगी। शामिर ने चौंक के इसकी ये हरकत देखी। जलिश, आप ठीक है? वो सर मोड़ के इसे देखने लगा तो इसकी तरफ खौफ से देखती। वो भी अपनी गिरफ्त इसके बाजू पे सख्त कर दी। शामिर ने गौर से रश को देखा। वहाँ इसे कोई ऐसा चेहरा नज़र नहीं आया जो इन्हें देख रहा हो, जिसे देख कर जलिश खौफजदा हो रही हो। शामिर इसीलिए हॉस्पिटल के अहाते में बाहर निकली। गाड़ी का दरवाज़ा खोल के इसे बिठाया और दरवाज़ा बंद करके खुद दूसरी साइड से आके ड्राइविंग सीट पे बैठ गया। जलिश सर नीचे की अपना चेहरा छुपा रही थी। शामिर ने गौर से इसे देखा। इसे जलिश की ये हरकत पे दुख हो रहा था। इसने गाड़ी ड्राइविंग वे पे डाल दी। पूरा इलाका छान मारा लेकिन इसे जलिश कहीं नहीं मिले। कहाँ जा सकती है वो? इन घने जंगलों से वो कैसे निकल सकती? इस एक रात में वो अगर रोड पे भी पहुंच जाए तो कैसे वासी से कोई गाड़ी भी मिल सकती है? वो तो जलिश की किस्मत अच्छी थी जो शर्मीन अपने गांव से वापस शहर जा रही थी तो जलिश इनकी गाड़ी से टकरा गई। गम और गुस्से से जवार शाह का बुरा हाल था। आखिर कहाँ गई है जलिश? किधर किधर घुमाएगी मुझे ये लड़की?
اسے ایک پل چین نہیں آ رہا تھا، سگریٹ کی دھویں اتارتا وہ زرلش کو سوچے جا رہا تھا۔ زرلش سالار، ایک بار بس ایک بار تم میرے ہاتھ لگ جاؤ، پھر دیکھتا ہوں کون تمہیں بچائے گا مجھ سے، کتوں جیسی حالت کر دوں گا تمہاری، موت مانگو گی۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ شام میں ہی وہ بنگلے میں، شہر والے بنگلے میں آیا اور اب اپنے کمرے میں غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ سگریٹ سے اس کا پورا کمرہ دھویں سے بھر گیا تھا اور وہ اس دھویں میں زرلش کی پرچھائی ڈھونڈ رہا تھا جو اسے نہیں مل رہی تھی۔ کیسا لگا سرپرائز؟ اس نے زرلش کو اونچی بلڈنگ سے دھکا دیتے ہوئے دوبارہ اپنی طرف کھینچا۔ وہ ایک دم سے چیخی تھی۔ زوار شاہ نے اس کی آنکھوں میں خوف دیکھتا ہوا کہا لگانے لگا، مزے کا تھا ہے نا؟ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ بولو مزے کا تھا نا؟ وہ اونچی آواز میں بولا۔ زرلش گھبرائے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں۔ وہ دوبارہ ہنسنے لگا۔ وائی ناٹ ٹرائی اگین؟ زرلش اسے التجائی نظروں سے دیکھنے لگی۔ نہیں نہیں پلیز، چلو ٹھیک ہے، نہیں کرتے ٹرائی۔ وہ اسے باہوں میں لیے منہ موڑ کے جانے لگا۔ زرلش کا وجود اس کے بازو میں کانپ رہا تھا۔ زرلش! کندھا ہلانے پہ زرلش خوف سے اوپر دیکھنے لگی جہاں شرمین کری اسے پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ کچھ نہیں۔ وہ سر جھکا کے اپنی انگلیاں تیزی سے مروڑنے لگی۔ شرمین نے غور سے اس کی حرکت دیکھی۔ جب انگلیاں مروڑنے میں زیادہ تیزی آئی تو شرمین نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ زرلش چونک گئی اور شرمین کو دیکھنے لگی۔ اس کے ہاتھ شرمین کے ہاتھوں میں لرز رہے تھے۔ میں سوچ رہی آج تمہاری پسند کا کھانا بنایا جائے، کیا پسند ہے تمہیں؟ شرمین اسے نرمی سے پوچھنے لگی لیکن اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرائے۔ اس کے کانوں میں زوار شاہ کی آواز گونجی تھی، میں سوچ رہا ہوں تمہیں آج تمہاری پسند کا کھانا بنا کے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں، اور ساتھ اس کی انگلیاں مروڑ دی اور درد سے چیخی تھی۔ زوار شاہ ہنس پڑا تھا۔ زرلش! وہ ایک دم سے ہوش میں آئی تھی۔ جی بیٹا کیا ہوا؟ کہاں کھو گئی تھی؟ کیا کہو گی؟ میں بنا دوں؟ کچھ نہیں آنٹی، بھوک نہیں ہے ابھی۔ وہ خوف سے تو رکاو پاتے سر جھکا کے بولی۔ یہ کیا بات ہوئی اب؟ مجھے تو اس عمر میں بھی جلدی جلدی بھوک لگ جاتی ہے۔ زرلش مسکراتی اس کی بات پہ۔ شامیر اور اہانہ گورننس کسی کوفتے بہت پسند ہیں، تمہیں بھی پسند ہے؟ شرمین کی بات پہ زرلش نے سر اس بات میں ہلائے۔ شرمین مسکرا کے اٹھنے لگی۔ چلو وہیں بناتے ہیں، ہیلپ کرو گی میرے ساتھ؟ وہ اسے فضول سوچنے سے بچانے کے لیے بولی تو زرلش مسکرا پڑی۔ جی بالکل۔ وہ ساتھ ہی اٹھ کے کچن میں چلی گئی۔ دوائیوں کے زیر اثر اب کافی بہتر ہو رہی تھی۔ زخم بھر رہے تھے اس کے، لیکن اس کے روح پہ جو زخم لگے تھے اسے بھرنے میں شاید ابھی بہت ٹائم لگنا تھا۔ سردیوں کی آمد تھی۔ رات کے وقت ٹھنڈی ہوائیں خوشگوار احساس بخشتے تھے۔ وہ ابھی بالکنی میں بیٹھی تھی، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے چہرے کو چھو رہے تھے جب شامیر نے اس کے پاس بیٹھ گئے۔ سوئی نہیں آپ؟ زرلش نے مڑ کے اسے دیکھا۔ تم بھی تو نہیں سوئے ہو؟ شامیر مسکرا پڑا۔ آپ تو یہاں بھی ٹیچر بنی رہتی ہے۔ زرلش کو ہنسی آ گئی، پھر وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آنٹی اور اہانہ بہت اچھی ہے، بہت خیال رکھ رہی ہے میرا۔ شامیر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ اب صاف ہو چکا تھا۔ کیوں برداشت کرتی رہی آپ اس کا ہر ظلم؟ زرلش کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، ایک پل کو پھر نارمل ہو گئی۔ ایک سایہ سا گزرا اس کے چہرے پہ۔ اپنے ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو دیکھنے لگی۔ جن لڑکیوں کے سروں پہ ماں باپ کا سایہ نہ ہو انہیں ایسے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ لوگ اس پہ اپنا حق جتانے لگتے، اسے زرخرید غلام بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ اپنا غصہ، اپنی فرسٹریشن وہ اسی پر نکال دیتے۔ پتہ کیوں؟ وہ ایک پل کو رکی پھر بولی، کیونکہ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ زرلش اسے دیکھنے لگی جس کی آنکھوں میں درد بلکورے لے رہا تھا۔ میری حالت تو زرخرید غلام سے بھی گئی گزری تھی۔ میرا جسم زخموں سے بھرا ہوا ہے لیکن میری روح بھی زخموں سے چلنی ہے۔ تم تو آزاد انسان ہو شامیر۔ مجھے زخم دے کے رونے بھی نہیں دیا جاتا تھا، کیونکہ اگر میں رو دیتی وہ میری آنکھوں میں ایسڈ ڈال دیتا۔ اس نے درد سے آنکھیں میچ لی جب وہ لمحہ دوبارہ سے اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جیسے کسی بچے سے پوچھا جائے کہ تمہیں آئس کریم میں کون سا فلیور پسند ہے، ویسے ہی مجھ سے پوچھے کہ تمہیں کس چیز سے مار کھانے میں زیادہ درد محسوس ہوتا ہے، بیلٹ سے، سگریٹ سے، لائٹر سے، چوری سے، رسی سے، ہاتھ سے؟ اور میں بول دوں ہر مار کا اپنا ایک الگ درد ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں جھلک پڑی۔ شامیر نے بے سختہ اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ بہت درد ہوتا تھا شامیر، بہت۔ اس نے اپنا سر تک کے شامیر کے کندھے پہ ٹکا دیا۔ شامیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں چیخی تھی درد سے تو میرے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اس کی آوازوں کو دبا دیا گیا۔
میں چیخ چیخ کے رونے کے لیے ترس گئی تھی. اگر میں رونا چاہتی اس نے روک کے سسکی لی تو مجھے سزا کے طور پہ پلکیں چپکنے نہ دیا جاتا. اگر میں پلکیں چپک دیتی تو مجھے تپر مار دیتا. وہ رونے لگ گئی اور دیر تک روتی رہی. شامیر نے اسے نہیں روکا رونے سے. اس کے کندھے پہ سر رکھ کے رو رہی تھی. شامیر کے آنسو بھی گر رہے. زرلش کے باروں میں جذب ہو گئی. کاش وہ اسے اکیلا نہ چھوڑتا. کاش اس کے راستے سے ہٹ کے سائڈ پہ نہ ہوتا. وہ زرلش کو بکا دیتا تو یہ سب نہ ہوتا آج. اپنے گیلے بال پشت پہ ڈالے وہ کچن میں سینڈوچ بنا رہی تھی جب شامیر کچن میں پانی پینے آیا اور اسے دیکھ کے ٹٹک گئے رک گیا. زرلش مگر انداز میں جیسے ہی مڑی اس سے ٹکرائی. شامیر جلدی سے پیچھے ہوا. اس کے نگرے روپ سے نظریں چراتے بولا میں پانی پینے آیا تھا. وہ ہلکا سا مسکرایا. اچھا تو پی لو. ہاں پی رہا ہوں. وہ سر کو جاتا پانی لینے کا. پانی پی کے وہ وہی کر رہا. زرلش نے اسے دیکھا. کچھ چاہیے تھا شامیر؟ نہیں تو. اچھا وہ پھر سے کام مصروف ہو گئے اور اسے دیکھنے لگا. اگر مجھے دیکھنے سے دل بھر گیا تو کچن سے باہر جا سکتے ہو. مصروف انداز میں اسے دیکھے بنا بولے. شامیر شرمندہ سا بوکھلا گیا. کچھ سمجھ نہیں آیا تو کچن سے ہی نکل گئے. زرلش زیر لب مسکرا پڑی. یہ لے مزیدار سے سینڈوچ ریڈی ہو گئے. زرلش ٹرے لیے لاؤنج میں آگے. شرمین کو دیکھ کے اس نے آہانہ کو بھی سینڈوچ دیے. پھر شامیر کی طرف آئی تو وہ نظریں چرانے لگا. سینڈوچ؟ وہ شرارت آنکھوں میں لیے اسے دیکھ رہی تھی. اسے سینڈوچ دے کے وہ شرمین کے پاس آ کے بیٹھ گئی. مزے کے ہے. شرمین کے کہنے پہ زرلش مسکرائی. تھینک یو. آہانہ نے بھی تعریف کی اس کے سینڈوچز کی. اس نے شامیر کو دیکھا جو اسے دیکھ رہا تھا. اس کے دیکھنے پر شامیر بوکھلا گیا. یمی ہے. زرلش نے اپنی ہنسی روکی جبکہ شامیر سر کو جانے لگا. زرلش باہر جانا چھوڑ ہی چکی تھی. رات میں شرمین نے زبردستی اسے شامیر کے ساتھ باہر بھیج دیا. ایک جگہ روک کے اس نے اپنے لیے اور زرلش کے لیے آئس کریم منگوائی. کھاتے ہوئے وہ اپنی یونیورسٹی لائف کی باتیں سنا رہے تھے. وہ ہنس رہی تھی. ہنستے ہنستے آئس کریم اس کے ناک سے لگ گئی. شامیر نے اسے ٹشو دیا. وہ سر جھکا کے اپنا ناک صاف کرنے لگی جب جانی پہچانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی. ایکسکیوز می. یس. شامیر نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو سامنے زوار شاہ تھا جو کافی جلدی میں لگ رہا تھا. اس نے زرلش کی طرف دیکھا. اس کا چہرہ سائڈ سے بالوں میں چھپا ہوا تھا. پھر اسے دیکھا. اپنی کار تھوڑی آگے لے جائیں گے پلیز؟ میری کار ہی پھنس گئی بیچ میں. اس کا دل چاہا کہ زوار شاہ کو اتنا مارے کہ اس کی شکل پہ گر جائے لیکن وہ خود پر کنٹرول کرتا جی کہہ کے گاڑی آگے لے گئے اور قدرے پرسکون جگہ پر لے جا کے گاڑی سائڈ پہ روک دی. زرلش جو یوں ہی بیٹی کام رہی تھی مس شامیر کے چونے پہ اچھل پڑی. نہیں میں نے کچھ نہیں کیا. پلیز مس اٹس می شامیر. شامیر گھبرائے لہجے میں اسے دیکھنے لگا. وہ خوفزدہ سی دیکھنے لگی. شامیر اس نے مجھے دیکھ لیا. وہ مجھے لے جائے گا. مجھے مارے گا. وہ رو رہی تھی. شامیر کی شرٹ پکڑے وہ کانپ رہی تھی. شامیر اسے سمجھانے لگا. اس نے نہیں دیکھا. آپ کا چہرہ چھپا ہوا تھا. نہیں اس نے دیکھ لیا ہے مجھے. اب کیا ہوگا؟ اب میرا کیا ہوگا؟ وہ سن ہی نہیں رہی تھی. وہ مسلسل ایک ہی جملہ بولی جا رہی تھی. مس پلیز. زرلش. آخر اس نے اونچی آواز میں اس کا نام لیا. وہ رک کے شامیر کو دیکھنے لگی. اس نے نہیں دیکھا آپ کو. آپ ریلیکس ہو جائے پلیز. وہ اس کے آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا. زرلش اس کا شرٹ چھوڑ کے شرمندہ سے سر جھکا کے بیٹھ گئی. سوری. شامیر نے جلدی سے کہا. وہ کر کے سیدھے ہو کے شیشے سے باہر دیکھنے لگی. اسے شرمندگی ہو رہی تھی. کس طرح سے اس نے شامیر کی شرٹ کو پکڑا تھا. شرمندگی سے بچنے کے لیے بال باندھنے لگی. شامیر کے منہ سے بے ساختہ پھسلا. ایسے ہی رہنے دینا. زرلش چونک کے اسے دیکھنے لگی جو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں سے بچنے کے لیے اس نے جلدی سے اپنے بال چھوڑ دیے اور باہر دیکھنے لگی. ڈر ختم کرو زرلش. اب تم اکیلی نہیں ہو. شرمین ساری بات سن کے بولی. وہ مجھے لے جائے گا دوبارہ سے. وہ یہی بات بار بار بول رہی تھی. ایسے کیسے لے جائے گا بھائی؟ اس کے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے. شرمین نے منہ بنا کے کہا. پھر اسے دیکھنے لگی. نکاح میں ہو اس کے. زرلش نے جلدی سے سر نفی میں ہلایا. پھر وہ کیا بول کے تمہیں لے جائے گا؟ ارے قانون بھی کسی چیز کا نام ہے کہ نہیں؟ ایویں لے جائے گا. وہ اپنے مخصوص انداز میں بولی تو سب کو ہنسی آ گئی. زرلش بھی مسکرا پڑی. ارے ماما نکاح کر دیں ان کا. کوئی نہیں لے جا سکے گا. پھر آہانہ کے کہنے پر زرلش اسے حیرت سے دیکھنے لگی. شرمین اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی. اور کس کے ساتھ؟ یہی ہمارے شامیر بھائی کے ساتھ. شامیر کا اس لمحے دل چاہا آہانہ کا منہ چومنے. خوشی سے زرلش منہ کھولے اسے دیکھنے لگی جبکہ شرمین مسکرانے لگی. ہاں یہ ٹھیک ہے. ارے نہیں میں اس سے 5 سال بڑی ہوں. زرلش کے اچانک بولنے پر شرمین اور آہانہ کو ہنسی آ گئی جبکہ شامیر کا منہ بن گیا. پھر بھی بڑا میں ہی لگتا ہوں. زرلش نے گور کے اسے دیکھا. میں ٹیچر ہوں تمہاری. وہ اب کچھ دیر پہلے والے کیفے سے باہر نکل گئی تھی اور اب شامیر کو گھور رہی تھی.
शाहमीर लुत्फानंदोज होते हुए बोला, थी टीचर टीचर ही होती है, वो जोर दे के बोली, और स्टूडेंट का दिल आ ही जाता है इतनी खूबसूरत टीचर पे। शाहमीर के बेसाख्ता बोलने पर जरलिश कुछ देर चुप रह गई। दोनों माँ बेटी उनकी बातों को दिलचस्पी से सुन रही थी। तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आपकी इजाजत की देर है बस। उसने सिर झुका शर्मीन और आहाना को देखा। दोनों हंस रही थी। फिर शामिर को देखा जो उसे नजरों के हिसार में लिए मुस्कुरा रहा था। वो उठ के अपने कमरे में चली गई। नाराज कर दिया उसे। शर्मीन ने उसे नाराजगी से कहा तो वो कंधे झुका के रह गया। वो सुबह नाश्ते पर नहीं गई थी। उसे उलझन हो रही थी कि वो कैसे जाए। सबके सामने वो सबसे नाराज होकर आई थी रूम में, अब कैसे जाती। नाश्ते पे शर्मिंदगी हो रही थी उसे। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो दरवाजे की तरफ देखने लगी। शर्मीन मुस्कुराती हुई अंदर आई तो वो जल्दी से खड़ी हो गई। आंटी आप आइए प्लीज। वो मुस्कुराती हुई अंदर आके बैठ गई। जर्लिश को पास बैठा के उसके चेहरे पर प्यार करने लगी। नाराज हो हमसे जर्लिश? नहीं आंटी, बिल्कुल भी नहीं। नाश्ते पे नहीं आई, मुझे परेशानी हो गई थी। जर्लिश का सर झुक गया था शर्मिंदगी से। जर्लिश, हाँ ना, ठीक कह रही है। तुम दोनों को एक दूसरे को जानते भी हो, और तुम्हें तो शामिर का पता है कि वो कितना तुमसे प्यार करता है। फिर बात मानने में क्या हर्ज है। वो रुक के उसे देखने लगी। आंटी वो बोलो बेटा। वो हकला रही थी। शर्मी ने नरमी से बात शुरू की। ये एज डिफरेंस मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता मेरी बेटी। मेरे लिए ये अहमियत रखता है कि दोनों में कितनी अंडरस्टैंडिंग है। ये फैसला तुम्हारी जिंदगी में बहुत अच्छी तब्दीली लाएगा, देख लेना। आंटी, मैंने कभी शामिर को इस नजर से देखा ही नहीं। उसने नजर पेश किया तो शर्मीन मुस्कुरा पड़ी। तो अब देख लो, बल्कि सुबह शाम देखो, मेरा बेटा तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा जर्लिश। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब और कौन सा बहाना बनाए। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसे शामिर से ही बात करना बेहतर लगा। शाहमीर अपने कमरे में नीम दराज मोबाइल में लगा हुआ था जब दरवाजे पर नॉक हुई। कम इन। वो बिना देखे बोला। जलिश अंदर आई और वहीं खड़ी उसे देखने लगी। शाहमीर ने मोबाइल से नजर हटा के देखा तो सामने जलिश को देख के वो एकदम से खड़ा हुआ। आप प्लीज आइए। जलिश दरवाजा बंद करके सोफे पे जाके बैठ गई। शाहमीर भी पास में बैठ गया। मुझे बात करनी थी। जी जी कहिए। वो मुस्तरिब नजर आ रही थी। मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों? शाहमीर के अचानक पूछने पर जलिश उसे देखने लगी। क्या मतलब क्यों? वो फिर भी उसे देखता रहा। मैं भी पूछूंगा क्यों? मैं तुम्हारी टीचर हूं तो। जलिश उसके यूं देखने से कंफ्यूज हो गई। टीचर से कौन शादी करता है? मैं। जलिश ने जिद होकर उसे देखा। वो इत्मीनान से मुस्कुरा रहा था। शामिर, मुझे गुस्सा दिला रहे हो? अब निकाल दे गुस्सा, मैं सुन रहा हूँ। मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी। वो धमकी देने लगी। मैं लॉक लगा दूंगा, आप कैसे जाएंगी? शामिर, मसला क्या है तुम्हारा? आपसे मोहब्बत। वो इतना मुतमईन था कि जर्लिश को बार बार उस पर गुस्सा आ रहा था। तुमसे बात करना फजूल है। वो उठने लगी तो शादी कर लें। जर्लिश घूर के उसे देखने लगी। शर्म कर लो थोड़ा सा तुम। आपको शर्माते देखना चाहता हूँ मैं। मेरी सादगी देखो, मैं क्या चाहता हूँ। जर्लिश गुस्से से कमरे से निकल गई। शामिर मुस्कुरा दिया। मिस जर्लिश। वो चुपचाप बैठे डिनर कर रही थी सबके साथ। शामिर कनखियों से उसे देखने लगा जिसके मुंह पे 12 बजे हुए थे। वो जेरे लब मुस्कुरा दिया। आहाना, मुंह पे 12 क्यों बज रहे हैं तुम्हारे? जलिश को छेड़ने के लिए उसने आहाना को पुकारा। वो जो बेखबर थी अचानक चूम के उसे देखने लगी। मैं कब आई? जलिश भी उसे ही देख रही थी। अच्छा, मुझे लगा 12 बज रहे हैं। वो जेरे लब मुस्कुराता हुआ बोला। जलिश उसे घूरने लगी। सीधी तरह से जर्लिश बोलो ना। शाहमीर ने मसनूई हैरत से उसे देखा। ओह मिस जर्लिश, आपके मुंह पे 12 क्यों बज रहे हैं? जर्लिश लबींचों से देखने लगी। तंग नहीं करो, मैं खाना खा रहा हूँ। वो कंधे झुका के बोला। आहाना ने अपनी हंसी डुबाई। शर्मी ने अपने बेटे को टोका। शामिर, नहीं तंग करो मेरी बेटी को। मामा, आपकी ये बेटी मुझे तंग करती है। मैं कब? वो हैरान सी शामिर को और शरारत पर उकसा रही थी। शर्मीन हंसने लगी। अरे नहीं बेटा, उसकी बातें ना सुनो, ये तंग कर रहा है तुम्हें। शामिर। वो शामिर को तंबिया करने लगी। शामिर मुस्कुरा दिया। ओके ओके, मैं चुप रहता हूँ। जर्लिश उसे ही देख रही थी। शामिर ने उसे आंख मारी तो जर्लिश सटपट आ गई। आज वो सब क्लिफ्टन आए हुए थे। जर्लिश काफी दिनों बाद बाहर आई थी उन सब के साथ। उसे काफी खुशी हो रही थी। आंखें बंद करके वो सूरज की किरणों को खुद पे महसूस करके लुत्फानंदोज हो रही थी। वो उन तीनों से थोड़ा फासले पर खड़ी थी। उसने आंखें खोली तो सामने जावर शाह नजर आया जो किसी लड़की के साथ बहस कर रहा था। उसे अपना बेजान होता हुआ महसूस हुआ। उसे लगा वो अब गिर जाएगी। वो पीछे की तरफ चलने लगी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जावर शाह उसके बिल्कुल सामने खड़ा है। जावर शाह ने उसे नहीं देखा था लेकिन जर्लिश का पूरा वजूद लर्ज रहा था। शामिर की नजर उस पर पड़ी तो जल्दी से उठकर उसके पास आया और पीछे से उसे थाम के उसका नाम लिया। मिस जर्लिश।
ज़लिश मुँह मोड़ के उसके सीने से लग गई। शामिर ने चौंक के उसे देखा, वो काँप रही थी। वो शामिर को समझ नहीं आई कि क्या करे। घर चले मिस ज़लिश, और इस बात में सर हिलाने लगी, वो मुझे देख लेगा, वो यहीं है। शामिर ने चारों तरफ देखा, ज़ावर शाह उसे कहीं नज़र नहीं आया। वो नहीं है, देखिए। न नहीं शामिर, चलो यहाँ से प्लीज़। शामिर उसे लिए शर्मीन और अहाना के पास आया। यूँ चारों घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते भर वो डरो खौफ से काँपती रही। शामिर बार-बार उस पे एक नज़र डाल रहा था। शर्मीन उसे अपने साथ लगाए तसल्ली दे रही थी, लेकिन बेसुध। जब मैं कहता हूँ शादी कर ले मुझसे तो आप मना कर देती हैं, और सबसे ज़्यादा सिक्योर भी आप खुद को मेरे साथ ही फील करती हैं। ज़र्लिश बालकोनी में बैठी थी जब शामिर बिल्कुल उसके सामने आके बैठ गया। ज़र्लिश खामोशी से उसे देखने लगी। मुझे डर लगता है शामिर, मैं बहादुर होना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसे सामने देखकर डर जाती हूँ। वो अपना चेहरा हाथों में छुपा गई। तो आप ना डरिए मिस ज़र्लिश। शामिर के कहने पर उसे देखने लगी। उसने मेरे अंदर इतना खौफ डाल दिया है कि मैं वो सर झुका गई। शामिर ने उसका हाथ थाम लिया। मैं आपके साथ हूँ हमेशा ज़र्लिश, आई मीन मिस ज़र्लिश, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। तभी तो मैं कहता हूँ कि शादी कर लें मुझसे। आई स्वेयर मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही रहूंगा। लेकिन वो रुक के उसके चेहरे के तासुरात देखने लगा। मैंने हमेशा आप ही का इंतजार किया है, आप ही को देखा है और आप ही को चाहा है, आपसे मोहब्बत की है। ये 2 साल जब मैं अलग हुआ ना आपसे, तो रोज ये सोच के खामोश करवाता अपनी मोहब्बत को कि जिधर जैसे आप खुश मैं उसी में खुश हूँ। जॉब मिली तो मम्मा डैडी यही कहती थी कि शादी कर लो, लेकिन मिस सच में मुझे किसी में अट्रैक्शन फील ना होती थी। मुझे आपके सिवा कोई पसंद ही नहीं आता था। ज़लिश उसे देखे जा रही थी। आपको उस रात इस हालत में देख के आप समझ नहीं सकती कि मुझ पर क्या गुजरी थी। आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। उफ, वो सर पकड़ के बैठ गया। ज़र्लिश गुम सी रह गई। शामिर ने नजर उठा के उसे देखा। आई लव यू मिस, आई लव यू सो मच। बस यही चाहता हूँ कि आप खुश रहें, हमेशा खुश रहें। लेकिन मुझे खुशी होती अगर आप मेरे नाम से मेरी निकाह में होती। फिर भी मैं इंतजार करूंगा, जब आप कहेंगी मैं इंतजार करूंगा। वो ज़र्लिश की आंखों में देखता हुआ बोला। ज़र्लिश नजरें चुरा गई। शामिर भी धीरे से उठ के वहां से अंदर कमरे की तरफ चला गया, लेकिन वो देर तक वहीं बैठी रही। शामिर की बातों पर गौर करती रही, अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी का सोचती रही। आने वाला वक्त उसके लिए क्या फैसला करने वाला है वो नहीं जानती थी। शर्मीन किचन में काम कर रही थी जब ज़र्लिश किचन में आई और शर्मीन को देखने लगी। अरे बेटा कोई काम था? नहीं, वो जल्दी में बोली, फिर रुक के उन्हें देखने लगी। जी आई मीन काम था। हाँ बताओ। आप रुक के मेरी तरफ तो देखिए। शर्मीन मुस्कुरा के काम छोड़ के उसे देखने लगी तो ज़र्लिश को समझ नहीं आई कि कैसे बात करे। ज़र्लिश क्या बात है बेटा? आंटी वो आप हो। उसने शर्मीन को देखा, फिर सर झुका लिया। आप शामिर को बोल रही मैं शादी कर रही हूँ उससे। शर्मीन हैरत और खुशी से उसे देख रही थी। अरे जर्लिश, उन्होंने जर्लिश को गले लगाया। तुमने हमें बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी। थैंक यू सो मच, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छा करे। शामिर के साथ वो मुस्कुरा दी। उसका माइंड खाली था। उसे नहीं पता था कि उसने सही फैसला किया है या गलत, लेकिन उसका दिल चाह रहा था कि वो उनकी ख्वाहिश का एहतराम करे, और उनकी खुशी इसी में थी कि वो शामिर का साथ कबूल कर ले। सो उसने वो ही किया। शामिर को जब से इलम हुआ हो तब से जर्ली से अकेले में बात करने के लिए पर तोड़ रहा था, लेकिन वो सामने ही नहीं आ रही थी। अभी वो चुपके से किचन से अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब शामिर उसके सामने आ गया। वो चीखने लगी थी जब शामिर ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया। वो उसे देखने लगी। शश मैं हूँ। वो उसे लेके साइड पे हुआ। क्या कर रहे हो यहाँ, क्यों लाए हो मुझे? आहिस्ता बोलिए प्लीज। क्यों? क्या मतलब क्यों? फिर भी मैं पूछूंगी क्यों? ज़लिश आंखों में शरारत लिए उसे देख रही थी। शामिर ठटक गया। मुझे कॉपी कर रही हैं? उसे वो दिन याद आ गया जब वो ज़लिश को ऐसे ही जिद कर रहा था। हाँ तो? ज़लिश दूबदू बोली तो शामिर खुल के मुस्कुराया। थैंक यू सो मच। ज़लिश भी मुस्कुरा दी। मेरी कुछ शर्तें हैं। ओह कैसी शर्तें? वो शरारत से उसे देखने लगी। मैं तुमसे बड़ी हूँ, सो मुझसे ज्यादा बदतमीजी नहीं करोगे। मैं जब गुस्से में होंगी तो चुप होके बैठोगे। वो रुकी तो शामिर दिलचस्पी से उसे देखता हुआ मुस्कुराया। अच्छा और? वो उसकी नजरों से घबरा के बोली, ज्यादा फ्री नहीं होगे? वो हंस पड़ा। आपका हुक्म सर। आंखों पे जलिश उसके अंदाज पे छटपटा गई और जाने लगी जब शामिर दोबारा उसके सामने आ गया। अब क्या है? जलिश उसे देखकर मुस्कुराने लगी। वो मुस्कुरा दिया। कुछ नहीं। जलिश मुंह बना के आगे बढ़ गई। शादी की तैयारियां अरूज पे थी। शर्मीन का बस नहीं चल रहा था। पूरे बुटीक्स के कपड़े उसके लिए ले ले। आहाना तो बार बार उसे भाभी बोल बोल के मजे लेती थी और शामिर को पर ही लग गए थे। उसकी भतीसी ही अंदर नहीं जा रही थी। जलिश सबको देखकर मुस्कुरा रही थी। सब खुश थे और जलिश भी खुश थी, ये सोच के कि नई जिंदगी की शुरुआत उसके लिए अच्छी साबित होंगी। ऐसे ही हंसे मुस्कुराते वो शामिर के कमरे में
में उसके दुल्हन के रूप में बैठी हुई थी। शामिर उसे एकटक देखे जा रहा था। जर्लिश कंफ्यूज हो गई। घूरना बंद करो शामिर। जर्लिश अपने नाम पे वो चौंक कर उसे देखने लगी। शामिर ने मसनूई हैरत से आंखें फैलाई। अब भी मिस जर्लिश बोलो आपको, अब तो बीवी हो मेरी यार। जर्लिश को हंसी आ गई। वो उसके और करीब आया। फ्री नहीं हो? जर्लिश ने अचानक कहा तो वो हंसने लगा। नॉट फेयर नाउ। जर्लिश मुस्कुरा के पलके झुका गई। शामिर उसके करीब होकर उसकी सांसें जर्लिश के चेहरे को छूने लगी। जर्लिश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो उसके होंठों पे झुकना चाहता था जब उसे जर्लिश के वजूद में लड़जाहट का एहसास हुआ। वो चूम कर उसे देखने लगा। जर्लिश 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 की आंखों में खौफ फैल रहा था। क्या हुआ मेरी जान? उसके होंठ हिल रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रही थी। उसे जावर शाह का जरहाना अंदाज याद आया जो उसके करीब आ रहा था। जर्लिश ने उसे धक्का देना चाहा तो उसे करीब करके जबरदस्ती करने लगा। जर्लिश अगर आप रेडी नहीं हो तो डोंट वरी, आप जितना वक्त लेना चाहती हैं ले लो। आई डोंट माइंड, मेरे लिए आपकी खुशी मुकद्दम है। वो उसके लरजते वजूद को अपनी बाहों में लेकर बोला, मेरे लिए यही काफी है कि आप मेरी हैं जर्लिश, आप मेरे पास हैं, आप रिलैक्स हो जाएं। वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। फिर आंखें मूंद के उसने शाहमीर के कंधे पर सिर रख दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ये कैफियत क्यों हो रही थी, लेकिन उसे अचानक अपना वजूद कपकपाता हुआ महसूस हुआ था। सुबह उसकी आंख खुली तो अपने पहलू में सोए शाहमीर का जायजा लेने लगी। वो सो रहा था अभी। उसकी आंखों के सामने उस शाहमीर का चेहरा घूम गया जो उसका स्टूडेंट हुआ करता था, जो सारा दिन टेबल पे कोहनी रखे क्लास में जैलिश को देखता रहता था। उसके लबों को मुस्कुराहट न छुआ। अगर मुझे देखने से दिल भर गया हो तो मैं आंखें खोल दूं। शामिर के कहने पर वो बौखला गई और झट से बोली, नहीं, क्यों, मुझे भी हक है आपको देखने का। उसने झट से आंखें खोल दी तो वो उठ के बैठ गई। वो भी बैठ के, ये क्या, दिस इज नॉट फेयर। जल्दिश उसे देखने लगी। मुझे भूख लगी है, मैं जा रही हूँ। थोड़ी शर्म कर ले, अब दुल्हन है अभी। शामिर उसे शर्म दिलाने लगा। वो मुंह बना के बोली, तो जाओ नाश्ता बना के लाओ मेरे लिए। अरे नहीं, आप तो बेटी हैं इस घर की। निकल गई हवा, अभी कहाँ। वो शरारत से बोला तो जलिश उसे घूरने लगी। सुधर जाओ शामिर, मैं तुमसे बड़ी हूँ, लगती तो छोटी ही है। वो मुंह बना के बोला तो जलिश को हंसी आ गई। मम्मा, हमें हनीमून पे भेज रही हैं। वो जो टीवी देख रहा था शामिर ने आके धमाका ही कर दिया। ऐसे कैसे, मना कर दो। शामिर उसे शाकी नजरों से देखने लगा। आप बहुत बुरा कर रही हैं मेरे साथ, रहम ही नहीं आता आपको तो। जलिश उसे घूरने लगी। मत बुरा करें ऐसे मुझे, मैं शोहर हूँ अब आपका, आपकी क्लास का स्टूडेंट नहीं हूँ। वो सर झुका के अपने लब काटने लगी। शामिर भी दुखी होकर साइड पे बैठ के मोबाइल पे बिजी हो गया। जलिश ने सर उठा के उसके संजीदा चेहरे को देखा। वो एक नॉर्मल इज़्दिवाजी जिंदगी चाह रहा था जलिश के साथ, और तो कुछ नहीं चाहता था। वो बीवी है उसकी, वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा था। जलिश दिल पे हाथ रख के बोल लो, क्या तुम्हारे दिल में शाहमीर के लिए कोई जगह नहीं? क्या कभी तुम्हारा दिल नहीं धड़का शाहमीर की मोहब्बत का सोच के? उसका ख्याल आते ही उसके दिल की धड़कन बेतरतीब हुई थी। उसने झिझकते हुए उसे आवाज दी, शामिर जी। वो मसरूफ अंदाज में बोला, कब जाना है? वो झिझक रही थी, आपका दिल नहीं, हम नहीं जा रहे। मेरा भी दिल चाह रहा है। फिर झिझक के रुक गई। शामिर के लब मुस्कुरा दिए उसकी इस अदा पे, लेकिन वो खामोश रहा और मोबाइल से नजरें नहीं हटाई। शामिर, उसने दोबारा उसे झिझक के बुलाया तो वो उसके करीब हो गया। जी शामिर की जान। जलिश बौखला गई। मम मैं, आप क्या? वो उसके अंदाज में शरारत से बोला, मैं मम्मा बुला रही है। वो उठने लगी। शामिर ने दोबारा उसे बैठा दिया। बैठिए आराम से, वो नहीं बुला रही। वो अपने खुश्क होंठों पे जुबान फेरने लगी। शामिर की कुर्बत से वो बौखला रही थी। प्यास लगी है, पानी पी लो। नहीं, मुझे भी प्यास लगी है। वो शरारत से बोला, तक तो मैं तुम्हारे लिए लाती हूँ ना पानी। वो कहने लगी तो शामिर उसकी आंखों में झांकने लगा। मुझे पानी नहीं चाहिए। वो पलके झुका गई। शामिर ने उसकी पेशानी पे अपनी लब रख दी है। जलिश उसे देखने लगी। आप ब्लश करती हुई बहुत प्यारी लगती हैं जलिश। जलिश पलकें झुका गई। शामिर की गुर्बत से उसे सुकून मिल रहा था। कोई डर, कोई खौफ का एहसास नहीं था उसके अंदर। वक्त के साथ साथ वो शामिर के संग इस डर और खौफ को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती थी। उसने धीरे से अपना सर शामिर के सीने पे रख दिया। शामिर के संग वक्त बहुत खूबसूरत था। वो अपने सारे दर्द भूल गई। उसे बस यही याद था कि शामिर उसके साथ है और हमेशा रहेगा। और शामिर जिसे हमेशा जलिश की चाह थी, उसे हमेशा यही था कि जलिश भी उससे मोहब्बत करे न करे, लेकिन उसकी शामिर की मोहब्बत में वो अपने सब दुख भूल जाए और शामिर की मोहब्बत को कबूल कर ले।
ज़ैली से इतनी मोहब्बत और अपनायत पाके वो तो हवाओं में उड़ रहा था। उसे तो लगा था सारी ज़िंदगी ज़ैलिश को वो अपनी मोहब्बत करने का इज़हार करने में गुज़ार देगा, लेकिन ज़ैलिश का उसके लिए मोहब्बत जतलाना और उसकी क़ुर्बत में ज़ैलिश की मुस्कुराहटें, उसकी वराफ़तगी के जवाब में ज़ैलिश का इज़हार मोहब्बत उसे सरशार किए जा रहा था। एक ऑफ़िशियल पार्टी में वो शामिर के साथ आई हुई थी। शामिर ने उसे अपने दोस्तों की फ़ैमिली से तारुफ़ करवाया। सब उनकी जोड़ी को सराह रहे थे। ज़र्लिश को प्यास महसूस हुई तो वो कोल्ड ड्रिंक लेने साइड पे लगे टेबल तक गई। हेलो मिसेस ज़र्लिश शाहमीर। जानी पहचानी आवाज़ पे वो चौंक के मुड़ी तो सामने खड़े शख्स को देखकर वो सकते में आ गई, जबकि ज़ाबिर शाह मुस्कुरा के उसकी सरापे को देख रहा था। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज माय डियर। ज़र्लिश बिना पलके झपकाए उसे देख रही थी। आह ज़र्लिश, यू आर लुकिंग गॉर्जियस माय डियर। वो सरता पैरों से देखता हुआ बोल रहा था। उफ, आप तो हैं ही खूबसूरत। मुझे पता नहीं होगा तो और किससे होगा। शाहमीर ने ज़र्लिश की तलाश में नजरें दौड़ाई तो उसकी नजर ज़र्लिश के पास खड़े ज़ावर शाह पे पड़ी तो वो तेजी से उस तरफ आया और ज़र्लिश की कमर के गिर्द बाजू हायल करके उसे खुद से करीब करते हुए कहने लगा, अरे जाना, मैं आपको ढूंढ रहा था। ज़र्लिश ने चौंक कर शाहमीर को देखा। वो मुस्कुरा के अब ज़ावर शाह को देख रहा था। ज़ावर शाह संभल गया था। मिस्टर शाहमीर, नो मिस्टर शामिर, नो डाउट यू हैव अ ब्यूटीफुल वाइफ, आई नो। शामिर जवाब में मुस्कुराया, फिर जलिश को देखने लगा। लेट्स गो डार्लिंग। वो उसे लिए आगे बढ़ गया। अपने दोस्तों से एक्सक्यूज करता वो बाहर निकल गया। जाविर शाह नहीं देख रहा था। शामिर को मालूम था कि अब जलिश वहां नहीं रुकेगी। उसके चेहरे पे फैलते खौफ को वो देख चुका था। क्यों क्यों उसे देखकर मैं कुछ नहीं कर पाती? डर और खौफ से मैं कुछ बोल क्यों नहीं पाती? वो कमरे में बैठे रोए जा रही थी। शामिर उसे चुप करवा रहा था, लेकिन वो सुन ही नहीं रही थी। मेरा दिल करता उसे कत्ल कर दूं, वैसे ही तड़पा तड़पा के रुला रुला के मर जाए वो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती। जरलिशा बहादुर है माय डियर वाइफ। नहीं हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ शामिर। वो उसकी बात काट के बोली। रोना नहीं बंद हो रहा था उसका। शामिर ने उसे बाहों में भर लिया। बस कर दो यार, मुझसे ये रोना देखा नहीं जाता आपका। उसके किए की सजा उसे जरूर मिलेगी। प्लीज नहीं रोए। जरलिश उसे चुप करवाने की कोशिश में लगा हुआ था और जरलिश चुप ही नहीं हो रही थी। किस्मत में एक बार फिर उसे जाविर शाह के मुकाबिल खड़ा किया था। वो सब किधर छुपे किधर जाए कि जहाँ जाविर शाह ना हो उसके आसपास। अब शामिर की बीवी थी वो, लेकिन फिर भी जाविर शाह की आंखों की चमक उसे सरता पैर लरसा रही थी। सलिश, आखिर सामना हो गया ही हमारा। मैंने कहा था ना कि हमारा सामना हो ही जाएगा एक दिन, और इसके बाद तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे। जाविर शाह ने जब से जर्लिश को देखा था उसे चैन ही नहीं आ रहा था। जर्लिश उसे अपने सामने चाहिए थी अभी, लेकिन वो मुस्कुरा दिया। इधर भी आ ही जाओगी सलिश, फिर मैं तुम और हमारी दिल फरेब मुलाकात। वो एक ही नुक्ते को घूरते हुए खुद से बोले जा रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि उसी वक्त वो शामिर से जर्लिश को छीन के ले आए इधर अपने पास और उसका हुलिया बिगाड़ दे, अपना 2 महीनों का गुस्सा उतार दे वो उस पर। लेकिन इतना आसान नहीं था। सबर करो जावर शाह, सबर। इस सबर का फल मीठा ही होगा। वो खुद से बड़बड़ाता हुआ मुस्कुरा रहा था। जर्लिश कमरे की सफाई कर रही थी जब उसके मोबाइल पे कॉल आई। उसने रिसीव की। हेलो। हेलो जर्लिश। आवाज सुनकर जर्लिश की आंखें खौफ से फैल गई थी, लेकिन उसे खुद को मजबूत बनाना था, डरना नहीं था। उसने क्यों कॉल की है? वो अपने डर को हतल मकान छुपा के बोली। तुमसे बात करनी है, मिस करता हूँ तुम्हें बहुत। जाविर शाह जिस अंदाज से बोला था जर्लिश को लगा वो अभी चकरा के गिर जाएगी। आइंदा मुझे कॉल मत करना, उसने दो टोक अंदाज में कहा तो जाविर शाह का कहका बुलंद हुआ। बहुत बोलना आ गया है तुम्हें, पर पूजे भी निकल आए हैं। जिस दिन सामना हुआ जर्लिश, उस दिन तुम्हारा हशर कर दूंगा। जर्लिश ने लरजते हाथों से मोबाइल बंद करके बेड पे फेंक दिया और खुद बेड पे बैठ गई। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। जाविर शाह फिर उसे बर्बाद करने आ गया था। वो आंखें बंद करके गहरी सांस लेने लगी, लेकिन उसकी कपकपाहट कम नहीं हो पा रही थी। पानी देना। जर्लिश डिनर करते हुए शाहमीर ने पानी मांगा तो वो प्लेट देने लगी उसे। शाहमीर ने उसे गौर से देखा। उसका चेहरा जर्द पड़ा हुआ था। पहले दिनों जैसी खुशी जैसी मसरत पड़ गई थी। शर्मीन और अहाना भी उसे देख रही थी। जर्लिश, हाँ हाँ। वो चौंक के शाहमीर को देखने लगी। क्या हुआ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कर कुछ नहीं हुआ। शर्मिंदा सी सबको देखने लगी, फिर प्लेट पे झुकी। वो भी चुप हो गया। सबके सामने उससे ज्यादा सवाल करना उसे ठीक नहीं लगा, मगर जब रात को कमरे में जर्लिश उसके कंधे पर सर रख के लेटी, तब शामिर
शामिर उससे पूछने लगा, क्यों परेशान हो जरलिश? जरलिश क्या बताती उसे, नहीं तो हूँ, नहीं हूँ परेशान, झूठ बोल रही हो, शामिर दुखी लहजे में बोला। नहीं, वो आंसू छुपाते हुए बोली। जरलिश रो रही हो, क्या हुआ मेरी जान? वो परेशान हो गया था, वो फिर आ गया है शामिर, मार डालेगा वो मुझे, वो रोते हुए लरसती आवाज में बोली। शामिर ने उसे बाहों में भर लिया। कुछ नहीं कर सकता वो, अब आप अकेली नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। शामिर के यकीन दिलाने के बावजूद वो खौफ से नजरों से उसे देख रही थी। नहीं डरिए प्लीज, डर को खुद से दूर रखिए, बस यही सोचिए कि मैं आपके पास हूँ। वो आप तक नहीं पहुंच सकता। उसकी बात पर जरली मुस्कुरा दी, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। खौफ ने उसे अपनी लपेट में ले रखा था। उसने शामिल को नहीं बताया था कि जावर शाह की कॉल आई थी उसे, वरना वो परेशान हो जाता। बस अंदर ही अंदर वो खौफजदा हो रही थी आने वाले वक्त का सोच के। कुछ पता चला जरलिश का? जावर शाह के अंदर आते ही इस्लाम शाह ने परेशानी से पूछा। नो डैड, नहीं पता चला अभी। उसने जरलिश के मिल जाने वाली बात अजलान शाह से छुपाई थी। क्या कर रहे हैं तुम्हारे आदमी? महीना हो गया लेकिन अभी तक जरलिश का कुछ पता नहीं, ना जाने कहाँ भटक रही होगी वो बच्ची। वो दुखी लहजे में बोले। जावर शाह ने बताया था कि उसका एक मुलाजिम जर्लिश की इज्जत से खेलना चाहता था, तभी वो भागी है और गायब है। मिल जाएगी डैड, बहुत जल्द मिल जाएगी। जावर शाह का अंदाज पुरसरार सा था। असलान शाह ठटक के उसे देखने लगे तो वो मुस्कुरा दिया। आई मीन आपकी बेटी मिल जाएगी, बस सब्र रखिए आप। अजलान शाह सर हिला के पानी पीने लगे, जबकि जावर शाह अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हेलो जर्लिश। जावेद शाह की आवाज सुनते ही उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। जब दोबारा से कॉल आई, वो मोबाइल स्क्रीन को खौफजदा नजरों से देख रही थी। दूसरी बार, तीसरी बार कॉल आने पर उसने फोन कान से लगाया तो जावेद शाह की करख्त आवाज उसके कान से टकराई। आइंदा मेरी कॉल डिस्कनेक्ट करने की गलती मत करना। क्या चाहते हो मुझसे? वो खुद को कंट्रोल करते हुए पूछने लगी। यू नो बेटर, तुमसे बस एक रात की ख्वाहिश। जर्लिश को अपना आप किसी खाई में गिरता हुआ महसूस हुआ। क्या बकवास कर रहे हो जलील इंसान? दूसरी तरफ से वो हंसने लगा। वेरी नाइस, बातें सुनाना भी आ गया है तुम्हें। वैसे जर्लिश बहुत खूबसूरत हो तुम, बट अफसोस उस रात मेरे हाथ से निकल गई। तब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, अब मिल ही गई हो तो उस एक रात का कर्ज भी उतार दो। शट अप। उसने कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल साइड पे फेंक दिया। उसका पूरा वजूद लर्ज रहा था। वो चकरा के गिर गई। ऑफिस से आके शामिर उसे ढूंढता हुआ रूम में आया तो उसे जर्लिश जमीन पे पड़ी बेहोश मिली। वो दौड़ के उसके पास आया। जर्लिश मेरी जान, क्या हुआ? उसे लेके बेड पर लुटाया। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। उसे परेशानी से देखता शामिर डॉक्टर का नंबर मिलाने लगा। डॉक्टर को बुला के अब वो सैलिश के पास ही बैठा था, उसे तशवीश से देख रहा था। चेकअप के बाद डॉक्टर ने शामिर को बाप बनने की खुशखबरी दी। मुबारक हो माँ, माँ बाप बनने वाले हो तुम दोनों। शामिर ने हैरत से डॉक्टर को देखा, फिर बहुत प्यार से जरलिश को देखने लगा जो होश में आ चुकी थी और अब शामिर की नजरों से खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। शर्मीन भी मुस्कुरा रही थी डॉक्टर को लेकर। शर्मीन कमरे से बाहर गई तो शामिर ने वालहाना अंदाज में जरलिश का माथा चूमा, फिर उसकी आंखों में मोहब्बत भरी नजरों से देखने लगा। थैंक यू जरलिश। जरलिश मुस्कुरा दी। ऐसे नहीं देखो शामिर, तो कैसे देखो मेरी जान? शामिर उसे मोहब्बत पाश नजरों से देख रहा था। वो चेहरा ही मोड़ गई शर्मा के। जर्लिश आई लव यू सो मच उसके कान के पास सरगोशी में बोलता वो जर्लिश के दिल की धड़कनों को बढ़ा रहा था। जब मोबाइल की 2 बजी वो खौफजदा नजरों से मोबाइल को देखने लगी, जैसे अभी जावर शाह उससे निकल कर आ जाएगा उसके सामने। शामिर की परेशानी का सोचकर वो उसे बता भी नहीं रही थी। मोबाइल की 2 बजी। उसने डरते डरते कॉल रिसीव की तो जावर शाह की आवाज टकराई उसके कान से। हेलो जाने मन। उसने डर के फोन बंद कर दिया। फिर 12 बजी। उसने खुद को तसल्ली दी, डरना नहीं, और बिना देखे फोन कान से लगाया। क्या मसला है तुम्हें जाविर शाह? क्यों पीछे पड़े हो? छोड़ते क्यों नहीं मेरा पीछा? दूर रहो मुझसे, आई समझ। जाविर शाह तुम्हें कॉल पर तंग करता है? जैलिश। शामिर की आवाज पर जैलिश का दिल धक से रह गया। शामिर जो पूछा उसका जवाब दो, उसकी सख्त आवाज आई। हाँ। शामिर ने कॉल बंद कर दी थी। जैलिश मोबाइल को देखने लगी। उसे डर लग रहा था कि अब क्या होने वाला है। उसे नई परेशानी ने घेर लिया। अब क्या होगा? शामिर क्या करने वाला है? वो घबरा रही थी कि अब क्या होगा। जावर शाह का ऑफिस का दरवाजा खोलता शामिर गुस्से से अंदर आया। पीछे उसकी सेक्रेटरी भी थी। यू ब्लडी बास्टर। जावर शाह अपनी जगह से उठा और अपनी सेक्रेटरी को जाने का इशारा किया तो वो चली गई। शामिर ने उसका गिरेबान पकड़ा। हु द हेल यू आर, जो मेरी बीवी को कॉल्स करके परेशान करो? उसके मुंह पे घूंसा मारकर वो खूनख्वार नजरों से उसे घूर रहा था। शामिर
मेरी बा वो एक और घूंसा मारा उसके मुंह पे। वो मेरी बीवी है, मेरी बीवी है। क्या सोच के तुम उसको कॉल करते हो ज़लील इंसान? और कितनी अपनी ज़लालत दिखानी है तुमने नीच इंसान। जावेद शाह को धक्का देकर वो उस पे झुका। आइंदा ये घटिया हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसे तनबिया करके कमरे से निकल गया। जावेद शाह अपने मुंह को छूने लगा। उसका होंठ फट गया था और खून बह रहा था। उसकी नज़र दरवाजे पे थी जिधर से अभी अभी शामिर गया था। ये अच्छा नहीं किया तुमने ज़लील शामिर को बता के। सब बहुत बुरा होने वाला है तुम्हारे साथ। क्यों डरती हो आप उससे ज़ैलिश? क्यों मुझे नहीं बताया कि वो आपको कॉल करता है क्यों? वो उस पे गुस्सा हो रहा था। ज़ैलिश आंसू भरी आंखों से उसे देख रही थी। आज पहली बार वो ज़ैलिश पे गुस्सा हो रहा था। शामिर का दिल पिघल गया यार। उसके सामने वो बैठ गया। रोया नहीं करो, मुझसे आपके ये आंसू नहीं देखे जाते, वो बेचारगी से बोला। ज़ैलिश अभी तक उसे आंसू भरी आंखों से देखे जा रही थी। शामिर ने बेसाख्ता उसे बाहों में भर लिया। आई एम सॉरी ज़ैलिश। वो खामोशी से आंसू बहा रही थी। शामिर ने उसका चेहरा हाथों में भर लिया। बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे, मुझे बता दिया होता मैं किस लिए हूँ मेरी जान। उसका माथा चूम के वो उसके आंसू साफ करने लगा। अब नहीं रोना प्लीज। मम मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर? वो बहुत जालिम है, वो मुझे मार डालेगा। अरे नहीं कर सकता वो कुछ भी। शामिर ने उसे तसल्ली दी, लेकिन ज़ैलिश का दिल जैसे किसी ने अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया हो। अच्छा नहीं किया शामिर को सब बता के ज़ैलिश, बहुत बुरा किया तुमने खुद के साथ भी और उसके साथ भी। ज़ावर शाह की डांट सुनकर फ़ोन की दूसरी जानिब ज़ैलिश का दिल काम गया। अब देखना मैं क्या करता हूँ। वो वक्त दूर नहीं जब तुम मेरे सामने गिर खड़ाओगी, पनाह मांगोगी मुझसे। ज़ैलिश पनाह, और मैं तुम्हें नोच लूंगा। ये कहकर ज़ावर शाह ने फ़ोन बंद कर दिया। ज़ैलिश खौफज़दा आंखों से सामने दीवार को देख रही थी। अब क्या होने वाला है, क्या करने वाला है ज़ावर शाह उसके साथ? उसका दिल सूखे पत्ते की तरह लड़स रहा था। शामिर को भी नहीं बता सकती, वरना वो गुस्से में कुछ कर बैठेगा। जावेद शाह को खौफ, उसका डर फिर से उसके दिल में जगह बनाने लगा। अब क्या होगा उसे नहीं पता था। शामिर अपने किसी काम से इस्लामाबाद जा रहा था। जर्लिश का दिल कांपे जा रहा था कि वो किसी तरह शामिर को रोक ले, लेकिन उसे परेशान नहीं कर सकती थी। वो खामोशी से उसका बैग पैक कर रही थी। शामिर ने उसे पीछे से आकर बाहों में ले लिया। क्या हुआ, चुप चुप क्यों हो? जलिश ने एकदम चूम के देखा उसे, फिर संभल के बोली, नहीं तो। उसके गाल चूम के उसका रुख अपनी तरफ मोड़ दिया। अच्छा मेरी जान, मेरे आने तक अपना और मेरी जमानत का ख्याल रखना। वो मुस्कुरा दी। जल्दी आना शामिर प्लीज। और जल्दी आने पे क्या मिलेगा मुझे? वो शरारती हुआ तो जलिश उसे घूरने लगी। निकलो, लेट हो रहे हो। शामिर ने हंस के उसकी पेशानी पे लब रख दिए, फिर उससे अलग होके उस पे अलविदाई नजर डाली। जलिश को लग रहा था जैसे उसका दिल कोई अपनी मुट्ठी में दबोच रहा है। उसे इल्म नहीं था कि वो इतनी खाइफ है जावेद शाह से। वो शामिर की बीवी थी, वो माँ बन रही थी। एक नन्हा वजूद उसके अंदर जन्म दे रहा था। उसे मजबूत बनना था, लेकिन वो जो एक खौफ जावेद शाह उसके अंदर डाल चुका था, जलिश उस खौफ से छुटकारा नहीं पा रही थी। वो खौफ उससे अलग हो ही नहीं रहा था। शर्मीन और अहाना एक तकरीब में गई हुई थी। जलिश का दिल नहीं था सोने की। अभी वो बैठी टीवी देख रही थी जब बेल की आवाज पे वो चौंकी। इतनी जल्दी आ गए, वो सोचते हुए उठी और दरवाजा खोलने चली गई। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने वाला शख्स उसके मुंह पे रुमाल रख के उसे बेहोश कर चुका था। वो बेहोशी उसकी बांसों में झूल गई। आंखें खुली तो खुद को उसी कमरे और उसी बेड पर पड़े पाया जिधर जावर शाह उसे अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता था। वो एकदम से उठ के बैठ गई। हेलो जलिश जानम। जावर शाह की आवाज पे वो चौंक कर दाएं तरफ देखने लगी। जावर शाह सोफे पे इत्मीनान से बैठा उसे देख रहा था। क्यों लाए हो तुम मुझे यहाँ? वो गुस्से से बोली। ना ना मेरी जान, इतना गुस्सा? वो उठ के उसके करीब आने लगा। वो अपनी जगह से खड़ी हुई, वो उसके करीब आके उसके चेहरे को छूने लगा तो वो दो कदम पीछे हटी। दूर रहो मुझसे, वो हंसा था। वो क्या है नजरलिश, मैं इतनी आसानी से अपनी चीज किसी को नहीं देता। फिर उसका बाजू दबोचा। अब सीधी तरह से मेरी बाहों में आके मुझे खुश कर दो। उस तुम्हारा ये संदली बदन। वो तरसी निगाहों से जर्लिश को देख रहा था। दूर रहो मुझसे, मेरे करीब नहीं आना। उसे खुद को बचाना था, इस नन्ही जान को बचाना था जो अभी इस दुनिया में नहीं आई थी। उसे मजबूत बनना था। क्या हो जाएगा डियर, बस एक रात की तो बात है। शामिर को भी पता नहीं चलेगा और मेरी प्यास भी बुझ जाएगी। फिर मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। जावेद शाह ने कहते साथ ही उसका दुपट्टा खींच लिया। जर्लिश की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे अपने बचाव का कोई रास्ता नजर न आया। उसे रोना आ गया था। वो अब इल्तिजाइया नजरों से जावेद शाह को देखने लगी। प्लीज जावर, प्लीज जाने दो मुझे, मत करो ऐसा मेरे साथ। वो जावर के बाजों में फड़फड़ा रही थी। वो उसे सुन नहीं रहा था। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे हौसला
बचा दे, मेरी मदद फरमा मेरे मालिक। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे खुद को इससे बचाए। जरलिश ने उसे धक्का दिया। मैं मर जाऊंगी, मार डालूंगी खुद को, लेकिन शामिर की अमानत में खयानत नहीं होने दूंगी। ओ कमान बेबीज। बालकोनी का दरवाजा खोला हुआ था। जलिश बिजली की सी तेजी से बालकोनी में गई और वो जावर शाह भी उसके पीछे आया। दूर हटो मुझसे जावर। उसे खींचने के लिए उसने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, जर्लिश ने बालकोनी से खुद को गिरा दिया। हर तरफ खून बिखर गया था। नीचे खड़े मुलाजिम हैरत से उसे देख रहे थे। वो खून में लथपथ थी। जावर शाह हैरत से उसके खून से लथपथ जिस्म को देखता रहा। फिर ऊंची आवाज में बोला, ले जाओ इसे किसी हॉस्पिटल के सामने फेंक आओ। वो ये कहता कमरे में चला गया और मुलाजिम उसके हुक्म की तकमील के लिए आगे बढ़ गए। उसे एक हॉस्पिटल के सामने फेंके। वो लोग गाड़ी आगे बढ़ा ले गए। वो खून में लथपथ बेहोश पड़ी थी जब एक नर्स की गुजरते हुए उस पर नजर पड़ी। खून से लथपथ चेहरे को देखकर वो चौंक गई। जरलिश वो जल्दी से दूसरी नर्सिस को बुलाने लगी। उसे स्ट्रेचर पर इमरजेंसी में ले जाने लगी। डॉक्टर जूबिया को बुलाओ जल्दी, डॉक्टर अहाना की भाभी है ये, जल्दी करो। सब अफरा तफरी में इधर उधर भाग रहे थे। अहाना परेशान सी बैठी रोती हुई शर्मीन को चुप करवा रही थी। जब से वो दोनों आई थी, जरलिश को घर में ना पाकर शर्मीन के तो हाथ पांव फूल गए। अहाना के मोबाइल पे कॉल आई। हेलो व्हाट। दूसरी तरफ से सब सुनने के बाद उसकी चीख ही निकल गई। क्या हुआ अहाना, बोलो। मम्मा, भाभी हॉस्पिटल में है और उसकी हालत बहुत खराब है। शर्मीन रोने लग गई। ये क्या हो गया। वो दोनों हॉस्पिटल जाने के लिए रवाना हो गई। हॉस्पिटल पहुंचकर अहाना इमरजेंसी वार्ड में गई तो जरलिश का खून आलूद जिस्म को देखते ही वो सकते में आ गई। जरलिश, डॉक्टर सलार उसे देखने लगे। डॉक्टर अहाना, आर यू ओके? तो प्लीज मेरी भाभी को बचा लें। सेव हर प्लीज। वो दीवार का सहारा लिए फटी आंखों से जर्लिश को देखने लगी। उससे हिला तक नहीं जा रहा था। वो कैसे ऑपरेशन करती उसका। वो तो उसके भाई की अमानत थी उसके पास। क्या जवाब देंगी उसे। क्या क्या हो गया जर्लिश के साथ, सोचकर ही उसके आंसू निकलने लगे। जर्लिश का काफी खून बह चुका है और आई एम सॉरी अहाना, उनका मिसकैरेज हो गया है। अहाना की आंखों में आंसू आ गए। कितनी खुशी थी उसके भाई भाभी और वो खुद। जर्लिश कैसी है। वो डॉक्टर जुबिया को देख रही थी। उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है अहाना, उसका खून काफी बह चुका है, दुआ करो बस। वो वैसे वो गिरी कैसे। अहाना कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बताए। उसे खुद भी मालूम नहीं था। ममा, जर्लिश किधर है, कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रही मेरी। शाबिर शर्मीन से फोन पे पूछ रहा था। शर्मीन से सक पड़ी। ममा क्या हुआ। जर्लिश तो ठीक है ना। शर्मीन के रोने में तेजी आ गई। शामिर को परेशानी होने लगी। बेटा, हम तुम्हारी इमानत की हिफाजत नहीं कर सके। क्या मतलब। शामिर ने धर के पूछा। जर्लिश हॉस्पिटल में है और शामिर फोन काट चुका था। वो पहली फ्लाइट से ही कराची पहुंचा और अभी हॉस्पिटल में अहाना की जुबानी सब सुन रहा था। उनका बच्चा नहीं रहा था। जर्लिश की हालत बहुत खराब थी। उसके बचने के चांसेस भी कम थे। शामिर की आंखों में खून उतर आया। वो तेजी से हॉस्पिटल से बाहर निकला था। अजलान शाह अपने बेटे जावर शाह के साथ बैठे चाय पी रहे थे जब शामिर गुस्से से फुंकारता हुआ अंदर आया। जावर शाह दोनों अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। शामिर ने जावर शाह का गला दबोच लिया। क्या किया है तुमने मेरी बीवी के साथ। अजलान शाह दोनों को देखने लगे। क्या बात है जावर। जबकि शामिर की आंखों में खून उतर आया था। जलील इंसान, कहा था ना अपनी जलालत समेत दूर रहो मेरी बीवी से। प्रेग्नेंट थी वो। उसका गला दबोच रहा था जबकि असलान शाह अपने बेटे को देखने लगे। जाविर, क्या किया है तुमने। जाविर की आंखें उबल पड़ी थी। ये झूठ बोल रहा है डैड। उसके मुंह से लफ्ज ही नहीं निकल रहे थे। मैं झूठ बोल रहा हूँ मैं। वो उसे लातों से मारने लगा। उस पर जुनून सवार था। क्या क्या जुल्म सहे हैं जरलिश ने तुम्हारी वजह से। जलील इंसान, उसकी इज्जत पे हाथ डाला। असलान शाह बेयकीनी से अपने बेटे को देखे गया। उसे खौफ की जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया था तुमने। अब जब वो मेरी बीवी है तो उसे मौत की घाट उतार दिया। जावर, तुमने मेरे बच्चे के साथ ये सब किया। असलान हैरत से अपने बेटे को मार खाता हुआ देख रहे थे। शामिर उनकी तरफ मुड़ा। पूछिए इससे कि इसने किस किस तरह से अजियत दी है जर्लिश को। उसके चेहरे जिस्म पे जख्म के निशान थे। उसका हाथ जला हुआ था। हमारे बच्चे का कातिल है ये। मेरी बीवी हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही है और ये इतने सुकून से बैठा हुआ है। तुम्हारा फैसला कानून करेगा। वो उसे खींच के उठा के बाहर की जानब जाने की सोच रहा था जब वो फुर्ती की तेजी से उठा और शामिर के मुंह पे घूंसा मार के वो बाहर की तरफ लपका। जब तक शामिर संभलता
था, वो गाड़ी में बैठ चुका था। शामिर के पहुंचते ही गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी। शामिर भी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और ड्राइवर पे डाल दिया कि वो जावर शाह की गाड़ी का पीछा करे। जावर शाह ने स्पीड बढ़ा दी, लेकिन मोड़ मुड़ते हुए वो बैलेंस न रख पाया और उसकी गाड़ी ट्रक से टकरा के दूर जा गिरी। शामिर गाड़ी को रोके उसे देखने लगा। जावर शाह का मुलाजिम अब्दुल, जिसने उस रात जल्लिश की मदद की थी, उसे भगाने में उसने सब असलान शाह को बताया। कैसे जावर शाह रोज उसे बंगले पे ले जाकर टॉर्चर करता, उसे डराता, धमकाता, उसे मारता। हॉस्पिटल के सामने कैसे पहरा लगवाया था और कैसे उस रात वो उसकी इज्जत से खेलना चाहता था और वो वहां से भागी थी, और कैसे उस रात वो बालकनी से नीचे गिरी थी। अजलान शाह बेयकीनी से सब सुन रहे थे। तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे अब्दुल? क्या कुछ साहस मासूम बच्चे ने उस जानवर की वजह से? उन्हें बहुत दुख हो रहा था। वो तो सर पकड़ के रह गए। जब मोबाइल की बी बजी, उन्होंने कान से लगाया तो उन्हें जावर शाह के एक्सीडेंट की खबर दी गई। वो कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, तो बेतासुर ले जाता, मेरा कोई बेटा नहीं है, और मोबाइल बंद कर दिया। जावर शाह की खून में लथपथ बॉडी किसी लावारिस की तरह हॉस्पिटल में इधर उधर चकरा रही थी। उसे इमरजेंसी वार्ड ले जाया गया। उसकी हालत बहुत खराब थी, सर पे ज्यादा चोटें आई थी उसे। डॉक्टर्स उसका ऑपरेशन करने लगे, लेकिन असलान एक बार भी हॉस्पिटल नहीं गए। अपने बेटे का सुन के भी वो चाहते भी कैसे? दुख ने उन्हें आन गिरा था। एक मासूम बच्ची जिसकी सरपरस्ती उन्होंने ली थी, उनका अपना बेटा ही उस लड़की की इज्जत और जान का दुश्मन बन गया था। जलिश अभी तक बेहोश थी, उसका जिस्म मुख्तलिफ मशीनों में जकड़ा हुआ था, उसकी रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचा था। शामिर बेंच पे सर दिए बैठा था, उसे एक एक करके जलिश की बातें याद आ रही थी। वो मुझे मार डालेगा शामिर, मुझे डर लग रहा है, प्लीज बहुत जल्दी आ जाना, मुझे अकेले छोड़कर मत जाना प्लीज शामिर। शामिर जोर से चीखा। शर्मीन दहल के उसके पास आई। सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से जलिश वहां है। वो डरो खौफ की जिंदगी गुजार रही थी और मैं उसे टालता रहा कि कुछ नहीं होगा। वो खुद को मलामत कर रहा था, उसे बार बार जलिश का खौफ बार बार उसके अल्फाज तकलीफ दे रहे थे। वो अपनी जगह से उठा और तेजी से चलता हुआ कॉरिडोर से गुजर के दूसरे कॉरिडोर में गया और जाविर शाह के रूम में दाखिल हुआ। करीब जाकर उसने जाविर शाह का गिरेबान पकड़ लिया। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें गलीज इंसान, मार दिया तुमने मेरी जर्लिश को, जान ले लूंगा तुम्हारी, घुट घुट के मार डालूंगा। सब उसे जाविर शाह से अलग करने लगे। डॉक्टर आलियान उसे लेकर बाहर आ गया। जाविर शाह का जिस्म बेजान पड़ चुका था, उसमें कोई हरकत नहीं है, दिमाग पे लगने की वजह से उसकी ये हालत हुई है। वो ठीक से हिल नहीं सकता। इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है उसके लिए? होश करो तुम, वो उसका दोस्त भी था। कैसे होश करूं आलियान, मेरी जर्लिश मुंह से लड़ रही है, कैसे होश करूं? वो बेचारगी से बोला। अल्लाह बेहतर करेगा शामिर, हौसला रखो। वो निडाल सा वहीं बेंच पे बैठ गया। एक बार, बस एक बार वो ठीक हो जाए, मैं उसे खुद से कभी अलग नहीं करूंगा, बस एक बार। वो रोने लगा। आर्यन उसे दिलासा देने लगा। वो देर तक वहीं बैठा अल्लाह से जर्लिश की जिंदगी की दुआएं करता रहा। मत मारो प्लीज जावर, मुझे दर्द हो रहा है। जर्लिश रो रही थी, बिलख रही थी, और जावर शाह उसके रोने से लुत्फानंदोज हो रहा था। बेड से उसको मार मार के वो सोफे पे गिर के बैठ गया और जलीज का तड़पना देखता रहा। और अब उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो हिल नहीं पा रहा था, न बात कर सकता था। बेजान वजूद के साथ वो बस आवाजें निकाल सकता था जिसे कोई समझ ही नहीं पाता था। मकाफाती अमर यही होता है शायद। उसे हर वो लम्हा अब याद आ रहा था जिस लम्हे उसने जर्लिश को अजियत दी थी, जिस लम्हे उसकी इज्जत पे हाथ डालना चाहा था, जिस लम्हे उसे रुलाया था। कामरान उसके पास आया। उसकी आंखों का खौफ देखकर वो घबरा गया। जावर ठीक हो? जवाब में वो अजीब आवाजें निकालने लगा जिसे समझने से कामरान कासिर था। आखिर वो जब अपनी बात समझा नहीं पाया तो सर पटक पटक के रोने लगा। कामरान उसे रोकने लगा, लेकिन वो नहीं रुक रहा था। वो खुद को हरकत नहीं दे पा रहा था। जावेद शाह का गुरूर जैसे एक ही लम्हे में खाक में मिल गया था। वो जो यही सोचता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक यतीम लड़की को असीयत दे दे, उसने कभी भी अपने खुदा को याद नहीं किया था। और आज जर्लिश अब खतरे से बाहर थी, उसे होश आ चुका था। शामिर उसके पास बैठा उसे देख रहा था, जबकि जर्लिश उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। जर्लिश मेरी जान इधर देखो ना, शाहमीर प्यार से उसे बोल रहा था, लेकिन वो नजरें चुरा रही थी। क्यों ऐसा कर रही हो? मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ शामिर,
मैं हमारे बच्चे की हिफाजत नहीं कर पाई, खो दिया मैंने उसे। वो फुट-फुट के रोने लगी। वो तुम्हारी अमानत में खयानत करना चाह रहा था। मैं कैसे उसे ऐसा करने देती? ऊपर से गिरा दिया मैंने खुद को। और हमारा बच्चा, वो रोए जा रही थी। उसकी हालत बिगड़ने लगी, उसकी सांसें रुकने लगी। शामिर उसे तसल्ली देने लगा, आई लव यू ज़रलिश। नर्स ने आगे बढ़कर उसे इंजेक्शन लगा दिया, उसका ऑक्सीजन मास्क ठीक किया। वो गुनूदगी में जाने लगी। शाहमीर आंसू भरी आंखों से उसे देखने लगा और आहिस्ता आहिस्ता ज़रलिश की आंखें बंद हो गईं। अजलान शाह ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो बेटे की हालत देखकर वो तड़प गए। जावर शाह की भी आंखें भीग गई उन्हें यहाँ देख के। जब से वो हॉस्पिटल था, कामरान के सिवा कोई उसके पास नहीं आया था। आज अपने बाप को देखकर उसकी आंखें भीग गई थी। वो उन्हें बुलाना चाहता था लेकिन उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन अचानक अजलान शाह को जर्लिश पे हुए जुल्मो सितम याद आए। वो आगे बढ़े और जावर शाह को देखने लगे। इंसान जब खुद को ताकतवर समझ के जुल्म करता है तो वो खुद को खुदा समझने लगता है। उसे इस बात का होश तक नहीं रहता कि ऊपर एक और ज़ात भी है जो उसे देख रही है। अफ़सोस ज़ावर, अफ़सोस, उस मासूम बच्चे पे ज़ुल्म करते हुए तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि वो इंसान है। इतने मग़रूर हो गए थे तुम, तुम्हें अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। ज़ावर शाह रोने लगा। उसके मुँह से अजीब-सी आवाज़ें निकलने लगी। अज़लान शाह उसे अफ़सोस से देख रहा था। काश तुम मेरे बेटे ना होते ज़ावर। काश, ये कहकर वो कमरे से निकल गए। वो मज़ीद अपने बेटे को इस हालत में नहीं देख सकते थे। उन्होंने मशहूर और काबिल डॉक्टर से बात की, ज़ावर शाह के हवाले से। वो बेहतर तरीके से ज़ावर शाह का इलाज करवाना चाहते थे। जो भी था वो अज़लान शाह का बेटा ही। उन्हें दुख ने घेर लिया था ज़ावर शाह को इस हालत में देखे। ज़लिश के कमरे में आके वो देर तक उसे देखते रहे थे। डॉक्टर ने ज़लिश को ज़्यादा हरकत से मना किया था। ज़लिश ने आहट पे आंखें खोली तो सामने अज़लान शाह को देखकर हैरान हुई। अंकल। अज़लान शाह आगे बढ़े, मेरी बच्ची क्यों छुपाया मुझसे? क्यों नहीं बताया कि ज़ावर तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करता है? मैंने तुम्हें हॉस्टल भेज दिया ताकि ज़ावर शाह तुम्हें तंग न करे, और मुझे फिर भी पता नहीं चल सका कि ज़ावर शाह क्या कुछ कर रहा है तुम्हारे साथ। मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। वो रोने लग गए। ज़लिश को भी रोना आ गया। प्लीज़ अंकल, ऐसा नहीं करें। प्लीज़। तो और क्या करूँ? ज़ावर की वजह से तुम इस हाल तक पहुँची हो। मैंने वादा तो नहीं किया था अपने दोस्त से। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दो। वो शर्मिंदगी से कह रहे थे। ज़लिश रोए जा रही थी। क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों? एक बार तो बता देती। अज़लान शाह को अफ़सोस हो रहा था कि वो क्यों यूँ अंधे और बहरे रहे। मैं कैसे बताती आपको? मुझे ज़ावर ने कहा था अगर अगर आपको पता चला तो वो मुझ पर एसिड डाल देगा। अज़लान शाह तड़प ही गए अपने बेटे की सफ़ाकी का सुन के। कैसे वो सफ़ाक हो सकता था इतना? उन्हें अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। एक यतीम बच्ची पे उनका सफ़ाक बेटा क्या-क्या ज़ुल्म ढा चुका था, वो सोच के ही काँप उठे थे। तुम ठीक हो जाओगे इंशाअल्लाह मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। वो देर तक आंसू भरी आँखों से उसके पास बैठे बातें करते रहे। वो खौफ़ज़दा आँखें, आँसुओं से भरी वो 2 आँखें जिन्हें बहने की इजाज़त नहीं देता था वो। उसकी चीखें, उसकी मिन्नतें उसे पल-पल याद आती थीं और उसे बेचैन कर देती थीं। लेकिन वो हिल नहीं सकता था। उसका वजूद तो सालम था लेकिन उसमें हरकत नहीं थी। वो कुछ कहने की कोशिश करता लेकिन उसकी ज़ुबान उसका साथ ना देती। नतीजे में उसके मुँह से अजीब-सी आवाज़ें निकलती और फिर वो रोने लग जाता। अज़लान शाह की मदद से मुल्क के बेहतरीन डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे थे। ज़ावर की हालत काबिल रहम हो गई थी अब। उन्हें तरस भी आता था उस पे। ज़लिश को अब घर शिफ्ट कर दिया गया था लेकिन उसे बहुत एहतियात की ज़रूरत थी अब। 1 महीने बाद वो अपने घर, अपने कमरे में आई थी। उसे सुकून का एहसास हो रहा था। बहुत खुश है मेरी बेगम आज। शामिर उसे आंखों के हसार में लिए बोला तो ज़लिश हंसने लगी। सुकून मिल रहा है अपने घर, अपने कमरे में आके। मुझे भी सुकून चाहिए अब, शामिर उसे आंखों के हसार में लिए कहने लगा तो ज़लिश ब्लश कर गई। चुप रहो तुम, लो जी आ गई उस्तादगिरी स्टार्ट। ज़लिश मुंह बना के उसे देखने लगी। इतनी बुरी लगती हूँ तुम्हें? हाँ बहुत, शामिर शरारत से बोला तो ज़लिश उसे घूरने लगी। मैं हूँ ही बुरी, और मुंह बसोर के बैठ गई। शामिर को हंसी आई और अचानक उसके गाल पे अपने लब रख दिए। ज़लिश अचानक से दूर हुई। नाट फिर मैं नाराज़ हूँ तो मैं मना भी तो रहा हूँ ना यार। शामिर ज़हरीला मुस्कुराता वैसे देख रहा था। और ऐसे मत देखा करो मुझे, मैं कंफ्यूज होने लगती हूँ। शामिर का कहका बेसाख्ता था। जो हुक्म आपका। ज़लिश इतराक से देखने लगी। 1 साल बाद
जर्लिश ने दोबारा से अपनी जॉब उसी कॉलेज में स्टार्ट कर दी थी। सब शामिर की कोशिशों से हुआ था, उसका डर खौफ सब खत्म हो चुका था। ध्यान रखना बस मेरी प्यारी बेगम, मेरे जैसा कोई स्टूडेंट ना टकरा जाए अब अगेन, शामिर ने एक दिन शरारत से कहा तो वो रूठ गई। बदतमीज शामिर बेसाख्ता हंसने लगा। उसकी क्लासेस ऑफ हुई तो वो घर जाने के लिए कॉलेज से बाहर आई। वो चलती हुई अपनी गाड़ी के पास जा रही थी जब उसके कानों से जानी पहचानी आवाज टकराई। जर्लिश वो आहिस्ता से मुड़ी तो जावेद शाह उसके सामने खड़ा था। उसके लबों पे नरम सी मुस्कुराहट थी। कैसी हो जर्लिश? जर्लिश बिना जवाब दिए मुंह मोड़ के अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलने लगी। बात कर सकते हैं कुछ देर प्लीज? जर्लिश मुड़कर उसे देखने लगी। प्लीज अब क्या प्लान बन रहा है तुम्हारे माइंड में जावर? जर्लिश बिना डरे बोली तो वो मुस्कुराया। कोई प्लान नहीं है जर्लिश, कुछ देर बात करना चाहता हूँ प्लीज। वो बोले बोलो। वो उसे देखने लगी। यहाँ वो इधर उधर देखने लगा तो घर पे प्लीज कौन से घर? उसे देख रही थी अपने घर, आई मीन यही हमारे घर पे। मैं कहीं नहीं जा रही, जो कहना है यही कहो। वो दो को टोक अंदाज में बोली। वो सर झुका गया। जर्लिश उसके झुके हुए सर को देखने लगी। वो नजर उठा के बोला प्लीज बात लंबी है, यहाँ नहीं हो सकती। प्लीज ट्रस्ट मी, आई विल नेवर एवर हर्ट यू। मैं चेंज हो गया हूँ प्लीज बाय। वो मुड़ी ही थी जब जावर शाह की आवाज ने उसके कदम रोक लिए। मैं मोहब्बत कर बैठा था तुमसे। जर्लिश मुड़कर उसे देखने लगी। क्या कुछ था उन आंखों में? वो नजरें चुरा गया। जर्लिश गाड़ी में बैठ के गाड़ी आगे बढ़ा ले गई। जावेद शाह वहीं खड़ा रहा काफी देर तक। बात हुई तुम्हारी जर्लिश से? अजलान शाह डिनर पे अपने बेटे जावेद शाह से पूछ रहे थे। उन्होंने बहुत इलाज करवाया था जावेद का। 1 साल की मेहनत और इलाज के बाद जावेद शाह इस काबिल हुआ था। अजलान शाह ने उसे माफ कर दिया था, लेकिन अब वो जर्लिश से भी माफी मांगना चाहता था, लेकिन वो मौका ही नहीं दे रही थी। नो डैड, वो मेरी बात नहीं सुन रही। मैंने उसे कहा भी है कि मैं चेंज हो चुका हूँ, घर पे बात करते हैं, लेकिन वो लब काटने लगा। अजलान शाह कुछ सोचने लगे। दुख भी तो बहुत मिले हैं उसे तुमसे, किस बेस पे ट्रस्ट करे वो अब तुम पे? हम जी डैड, आप ही कुछ करें अब प्लीज। मैं जी आप कह दें जर्दिश को कि आपकी तबीयत खराब है, वो एक दफा आपसे मिलने आ जाए। अजलान शाह से देखने लगे तो जावर जल्दी से बोला प्लीज पापा प्लीज। ठीक है। वो मोबाइल निकाल के जर्लिश का नंबर मिलाने लगे। दूसरी बेल पर जर्लिश की आवाज उनके कानों से टकराई। बेटा मैं हूँ अजलान शाह। अरे अंकल आप, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, सोचा तुम्हें कल घर पे बुला लूं, कुछ देर के लिए आ जाओ, बातें करेंगे कुछ देर। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। जर्लिश बेटा, जी जी अंकल ठीक है मैं आ जाऊंगी। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज। फोन बंद करके वो जावेद शाह को देखने लगे जो मुस्कुरा रहा था। बंगले के सामने उतरकर उसके कदम लटखड़ाए थे, लेकिन फिर वो संभल के आगे बढ़ी। उसमें एतमाद आ चुका था। अब उसमें कोई डर और खौफ नहीं था। वो एक मजबूत औरत थी अब जिसे शाहमीर का एतमाद हासिल था। मुलाजिम उसे लिए ड्राइंग रूम में लाया। मैं बड़े साहब को बुला के लाता हूँ। वो कमरे से निकल गया। जर्लिश कमरे का जायजा ले ही रही थी जब जावेद शाह मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। एक पल को जर्लिश का दिल दहल गया, लेकिन अगले लम्हे वो खुद को संभाल के अपनी जगह से खड़ी हो गई। अंकल कहाँ हैं? आ रहे हैं। वो उसके पास आया और जर्लिश का दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था, लेकिन खुद को वो बहादुर दिखा रही थी। बैठो ना प्लीज। वो बैठते हुए बोला तो वो बैठ गई। उसे देखने से कतरा रही थी और जावेद शाह की नजरें उससे हट नहीं रही थी। अगर कोई आपसे सच्चे दिल से माफी मांगे तो क्या करना चाहिए? जर्लिश ने एक नजर उसे देखा। वो खुद ही कहने लगा माफ कर देना चाहिए है ना? जर्लिश मुंह मोड़ गई। मैं मोहब्बत करने लगा था तुमसे जर्लिश। जर्लिश गुस्से से खड़ी हो गई। ये क्या बकवास है जावेद शाह? अब क्या प्लान बन रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्यों मेरी पुरसुकून जिंदगी को डिस्टर्ब करने पहुंच जाते हैं? वो उस पे चीखी ही थी। जावेद शाह घबरा के सॉरी करने लगा। प्लीज जर्लिश, आई एम सॉरी, प्लीज गुस्सा नहीं हो। जर्लिश उसे हैरत से देख रही थी। प्लीज बैठो और प्लीज मेरी बात सुनो। वो उसे हैरत से देखती बैठ गई। मैं अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगता हूँ तुमसे जलिश। मैंने जो भी किया उन सब के लिए सॉरी। बहुत छोटा पड़ा है, लेकिन वो सर झुका गया। मैं मोहब्बत करने लगा था तुमसे जलिश, लेकिन मुझे मोहब्बत करना नहीं आया। मुझे मजा आता तुम्हारी आंखों में खौफ देख के। मेरा दिल चाहता था तुम मुझसे डरो। सिर्फ मुझे सोचो, सिर्फ मेरे पास रहो। मैं जो करूँ जैसा करूँ तुम कभी इनकार ना करो, क्योंकि मुझे ना सुनने की आदत नहीं थी। और फिर मोहब्बत जिद बन गई तो मेरी जिद बन गई थी जर्लिश। मैं तुम्हें हासिल करना चाहता था बस, और मैं खुद को खुदा ही समझ बैठा। मुझे लगा वो रुका। जर्लिश की आंसू भरी आंखें उस पे जमी थी। तुम्हें बहुत तकलीफ दी है मैंने जर्लिश, तुम पे बहुत जुल्म किए हैं। मुझे खौफ ही नहीं महसूस हुआ कभी, कभी रहम ही नहीं आया तुम पे।
फिर जब एक्सीडेंट के बाद मैं बेड पे पड़ा रहता, मैं हिल नहीं पाता था, तब पल-पल तुम्हारी याद आई मुझे, तुम्हारी खौफज़दा आँखें, तुम्हारे आँसू, तुम्हारी चीखें, तुम्हारा दर्द। और फिर उस रात जब तुमने खुद को नीचे गिरा दिया, मैं खुद को बुरा कहता, रोता, खुद को मारता कि मैं क्यों इतना ज़ालिम बन गया था। मैं तुमसे माफ़ी माँगना चाहता था ज़र्लिश, माफ़ी। ज़र्लिश की आँखों से आँसू छलक पड़े, तुमने मेरे ऊपर ज़िंदगी तंग कर दी थी ज़ावर। मैं मौत की दुआ भी नहीं माँग सकती थी क्योंकि मुझे लगता था ज़ावर शाह को पता चला तो वो मुझे मार देगा। क्या उन सब के लिए माफ़ी काफ़ी है ज़ावर? तो जो भी सज़ा है मुझे वही सज़ा दो ज़र्लिश, मैं तैयार हूँ हर सज़ा के लिए। तब तुमने मेरी इज़्ज़त पे हाथ डाला, मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया, मार डाला तुमने उसे, मेरी रूह छलनी-छलनी कर दी तुमने। मेरा जिस्म ज़ख्मी, मेरी रूह ज़ख्मी, वो रोने लगी। कोई ऐसे भी करता है? मैंने किया ही क्या था तुम्हारे साथ? जो सब किया तुमने मेरे साथ, वो सर झुका गया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी ज़ावर शाह, कभी नहीं, आइंदा मेरे रास्ते में कभी नहीं आना। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और चली भी गई थी, लेकिन ज़ावर शाह अपनी जगह से हिल नहीं पाया। वो माफ़ी के लायक भी नहीं था। गाड़ी घर के रास्ते पे ड्राइव करते उसकी सोचों का महवर सिर्फ शाहमीर था, जिसकी बरामदगियाँ हमेशा उसे सरशार करती थीं, जिसकी मोहब्बत ने उसे नई ज़िंदगी बख्शी थी। उसे किसी और से इज़हार मोहब्बत की ज़रूरत ही नहीं थी। एक तरफ ज़ावर शाह की मोहब्बत थी, जिसने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था, उसे ज़िंदा लाश बना दिया था, और दूसरी तरफ शाहमीर की मोहब्बत, जिसने उसे दोबारा से ज़िंदगी बख्शी थी। वो बहुत खुश थी शामिर की संगत में, और ज़ाविर शाह को वो कभी भी माफ़ नहीं कर सकती थी। वो उसके बच्चे का कातिल था, उसकी उम्मीद छीनी थी। खैर, होता है ज़िंदगी में, बुरे दिनों के बाद खूबसूरत दिन भी आते हैं। हर रात की तारीकी के बाद सुबह की रोशनी हमारी मुंतज़िर होती है। इसके साथ ही ये नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा।